matrices and equations in MATLAB software. So this is the basic thing. So let's start with a very basic example. That is the very simplest equation is basically a circle. Okay, so let's talk about the how to plot this thing in MATLAB. So let me start with a very simple equation of a circle, that is x square plus y square, say radius is 5, so overall 25. So I am talking about circle with center at origin and with a radius of 5, and this is the mathematical equation of circle. So basically you all can say, if I want to compute the value of y, it will be equal to basically plus minus 5 square minus x square. Obviously you can clearly see it is not a function, because it is not giving you a exact or unique value at every point of x. So basically I can make it as a function if I will take two branches. For example, say y is having two branches. First branch is y1, which is basically 5 square minus x square, and second branch is y2, which is negative of 5 square minus x square. Now it's a circle. So basically the two branches are, the first branch is basically I can write, this is the first branch, which is y1, that is the upper part, and say this is the second branch, which is basically y2. Correct? आपने पूछा. So which is the second branch, basically y2. So this is upper, this is lower. So I want to plot this thing in MATLAB. So what will be the procedure? So let me write it here. So now the procedure is, we want to say plot y is equal to y1 is basically this one. So it means first thing, that is step number one, we have to ensure that we give the values of x to MATLAB. Step number two, then we have to define this function. Which function? Y1. So in totality, I have y is equal to plus minus r square minus x square, where your r, the value of r is fixed, that is 5, and the value of x is varying from minus 5 to 5, because as you can see that the graph is basically like this. R is fixed and your x is going from minus 5 to plus 5. Correct? Okay, so this is my task. So I have to give the input r is equal to 5 in MATLAB, first step. Then I have to give the variable x, which is varying from minus 5 to 5. And finally, I have to define function. Actually, this is not a function. So basically, I have to define two branches, y1 and y2. I hope I am clear up to this point till now. Okay, let's try to write a code for this thing. So let's try to write here only. So the code will be, first thing I want to put the value of r. So my first step will be put r is equal to 5, because I have taken the radius value as 5. Then second thing is that I want to take the value of x that should vary from minus 5 to 5. So I hope till now you are familiar about the thing lin space, that is linear space, going from minus 5 to plus 5, say with 11 points. अच्छा, कोई आप में से मेरे को बताएगा इसकी आउटपुट क्या होगी? लीनियर स्पेस, the left hand point is minus 5, right hand side is 5, and total 11 points. What will be the output? Means हमने ये कमांड लगा दी, तो मैटलैब इससे क्या आउटपुट देगा सिर्फ इतनी सी कमांड से? देखें, तो इसका मतलब ये है कि आप -5 से स्टार्ट करो, +5 तक जाओ,
और रास्ते में टोटल कितने ऐसे पॉइंट्स कवर करो, 11, तो ऑब्वियसली द आउटपुट विल बी -5, -4 and so on 3 and so on 1, 2 and so on up to 5. It means the output of this command will be x will take values -5, -4, -3, 0, 1, 2 and so on up to 5. Total 11 values that x will take. और अभी अभी आज हमने जब स्टार्ट किया, द नेम इज मैटलैब, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स. इट मीन्स एक्स विल हैव, एक्स विल बी अ मैट्रिक्स whose order will be 1 cross 11. करेक्ट. तो अगर आप कर रहे हो तो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ यहां तक के कोड की प्रैक्टिस करते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दीज टू थिंग्स. सो मैंने पहले से थोड़ा सा टाइप कर लिया था ताकि मेरा टाइम सेव हो, बट एक बार के लिए इसको छोड़ते हैं, हम सिर्फ पहली 3 लाइन्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. वेरी फर्स्ट लाइन इज circle plot in Cartesian coordinates. Obviously I have written the name of the my object is. Then we have clear all, because I want to clear all the old commands that are basically within this system. Clear f, I want to clear all the figures. These are basically short commands. Clear all means clear all the entries that we have used till now. CLF, clear all the figures. Then I have taken the value r is equal to 5, and then there is a linspace command. Linspace command is basically from -5, because the value of r is 5, from -5 to 5 up to 11 points. So let's see the output of this thing. So you can clearly see this is the output. X is taking values from, बेटा आई होप मेरा जो स्क्रीन है वो आप सबको क्लियर है, और अगर आप चाहते हो तो मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, या ये ठीक है आप लोगों के लिए विजिबल है? आई होप ये क्लियर है. अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ कि कोई चीज़ ना आपको समझ में आ रही है या फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो, प्लीज़ मेरे को उसी समय आप रोक देना. तो सिर्फ अभी हमने 2 स्टेप किए. r इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू लिनस्पेस फ्रॉम -r टू r 15, और उसका आउटपुट मेरे पास ये आ गया x. तो x इज अ मैट्रिक्स. कौन सा मैट्रिक्स? विच इज हैविंग अ सिंगल रो एंड टोटल 11 पॉइंट्स, यानी कि इट इज अ 1 क्रॉस 11 मैट्रिक्स. करेक्ट. ओके. सो नेक्स्ट थिंग, आई वॉन्ट टू डिफाइन माई फंक्शन. ठीक है, यहां तक हमारा हो गया कि आउटपुट भी हमारे को समझ में आ गई. तो नेक्स्ट इज अगेन वी वांट टू डिफाइन आवर फंक्शन. तो बेसिकली फंक्शन हमारे पास क्या था शुरू में? y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इट मीन्स एक मेरे पास अपर ब्रांच है दिस वन, और एक मेरे पास लोअर ब्रांच है. तो कितना आसान है इसको डिफाइन करना. हाँ जी, क्या करेंगे? से अपर ब्रांच को मैं y अपर कह रहा हूं, तो y अपर क्या हो गया? स्क्वायर रूट, है ना. तो इसको मैटलैब में अब स्क्वायर रूट को कैसे लिखा जाएगा? इट विल बी SQRT स्क्वायर रूट. नाउ इट विल बी क्या रहेगा? आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर. अब ये बताओ, आर आपके पास क्या है? आर इज बेसिकली अ स्केलर. करेक्ट. तो इट मीन स्क्वायर कैसे? सिंपली आर स्क्वायर. और x आपके पास क्या है? x इज अ वेक्टर. वेक्टर इन द सेंस दैट इट इज बेसिकली अ मैट्रिक्स विद डायमेंशंस 1 क्रॉस 11. तो आपके लिए x का स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा? x का स्क्वायर विल बी x डॉट स्क्वायर. आई होप ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है, पहले 4 लेक्चर में कवर करवा दी गई है. y अपर, मैं अपर पार्ट की बात कर रहा हूं, इट विल बी आर स्क्वायर. आर पे डॉट क्यों नहीं लगाया मैंने? बिकॉज आर इज ऑलरेडी अ स्केलर. तो सिंपली आर स्क्वायर माइनस एक्स डॉट स्क्वायर. एंड व्हाट विल बी y लोअर? y लोअर मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर ब्रांच. इट विल बी नेगेटिव स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स डॉट स्क्वायर. ये हो गया मेरा लोअर ब्रांच. अच्छा, अब मेरे को प्लॉट करना है. प्लॉट कैसे करूंगा जी मैं? प्लॉट x विद रिस्पेक्ट टू y अपर, है ना. अगर आप इतना भी लिख दोगे इससे प्लॉटिंग हो जाएगी. और साथ में मैं होल्ड ऑन करके क्या कर रहा हूं? दूसरा कमांड कि इसके लिए प्लॉट
x कॉमा y लोअर। फाइन, अगर मैं इतना लिखूंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए, ये आउटपुट आनी चाहिए सर्कल की। ट्राई करें एक बार। तो अगर आप लोग अपने साथ साथ सिस्टम में कर रहे हो तो प्लीज जरा कोड एक बार जरा टाइप करना स्टार्ट करिए। तो नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करना है। तो आप फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन क्या है, अपर एंड लोअर ब्रांचेस, ये मैंने लिख दी, अपर एंड लोअर ब्रांचेस है ना, अपर एंड लोअर ब्रांचेस। और ये क्या हो गया, y अपर इज बेसिकली स्क्वायर रूट आर स्क्वायर। डॉट क्यों लगाया है, मैंने अभी बताया कि डॉट आपके लिए किसके लग रहा है, बिकॉज x इज बेसिकली अ मैट्रिक्स दैट इज 1 × 11, इट्स अ रो मैट्रिक्स। सिमिलरली y। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट, ये सारी चीजें हम बाद में देखते हैं, पहले जरा ये प्लॉट कमांड देखते हैं। प्लॉट ऑलरेडी आपको क्लियर है, x आपका वेरिएबल कॉमा y अपर, जिसका आप फंक्शन जो आपने डिफाइन किया है y अपर। ये जो मैंने k लिखा है, इट मीन्स मेरा जो आउटपुट है वह मैं चाहता हूं कि वो ब्लैक कलर की लाइन में शो हो, तो k इज द शॉर्टकट फॉर योर कलर कमांड दैट इज ब्लैक। लाइन विड्थ मैं चाहता हूं, जो नॉर्मल लाइन विड्थ रहती है वो बाय डिफॉल्ट इट इज 1, मैं उसको थोड़ा सा लाइन विड्थ को बढ़ा दिया, तो मैंने लाइन विड्थ 2 रख दी है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब मैं इसको कह रहा हूं कि एक और अभी मैं फंक्शन प्लॉट कर रहा हूं, कौन सा, y लोअर का। तो एक बार ऐसा करते हैं, हम लोग हाँ जी, एक बार हम ऐसा करते हैं, होल्ड ऑन कमांड को अभी के लिए हटा देते हैं, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि ऊपर वाला कैसा प्लॉट हो रहा है। तो जब आउटपुट की, तो दिस इज द आउटपुट। क्यों आउटपुट ऐसा आया, क्योंकि मैंने लोअर ब्रांच को कम कर दिया, कम मतलब मैंने हटा दिया लोअर ब्रांच को। और अगर मैं लोअर ब्रांच का भी साथ में प्लॉट कर दूं, तब हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ये हमारे पास कंप्लीट आउटपुट है। अब कोई मेरे को आप में से अगर इंटरेक्ट करके ये बता सकता है कि आपके पास ये जो सर्कल बना है ये डिस्टॉर्टेड क्यों आ रहा है मेरे इस कोड में, मैं क्या चीज चेंज करूं कि ये जो सर्कल है वो स्मूथ हो जाए, ये ऐसे कॉर्नर्स मेरे को ना दे। मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम और व्हाट इज द इश्यू हियर, कि मेरे पास सर्कल पूरा एज अ स्मूथ सर्कल नहीं आ रहा। ओके, मैं ना चैट साथ साथ में नहीं पढ़ पाऊंगा, अगर आप चैट पे कुछ लिख रहे हो यू कैन, यू मे स्पीक। ओके, तो हम बेसिकली सर्कल स्मूथ क्यों नहीं हो पा रहा, सर्कल स्मूथ इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मैंने जो नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए थे, यानी कि जो ग्रिड्स बनाई थी वो बहुत कम बनाई है। अगर मैं यही 11 की बजाय से 50 कर दूं, अब जरा देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये लीजिए जी, आपका हल्का सा स्मूथ हो गया, बहुत कम कॉर्नर्स रह गए। अच्छा, अगर मैं 100 कर दूं, 100 मतलब मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, मैं उसको बोल रहा हूं जो एक्स का आप लीनियर स्पेस बना रहे हो उसमें टोटल आप 100 पॉइंट्स रखो, है ना। तब आपके पास क्या हो गया, देखिए और स्मूथ हो गया। तो इट मीन्स मैटलैब में आप सोचो हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक्स को लीनियराइज किया, लीनियराइज मतलब -5 to 5 के बीच में इसको स्प्लिट किया। पहले सिर्फ 11 किया तो उसने आंसर दे दिया, अगली बार मैंने 50 कर दिया, मतलब यहाँ पे मेरे को बीच में 50 पॉइंट्स दे दो, तब भी उसका आंसर आ गया। 100 आया, तब भी उसका आंसर आ गया। इट मीन्स मेरे पास कितनी जल्दी मैटलैब मेरे लिए कंप्यूट करके बता रहा है हर एक पॉइंट को। करेक्ट, तो यही हमारे पास मैटलैब का एक है, इट्स अ पावरफुल टूल, क्योंकि ये आपका बहुत जल्दी कंप्यूटेशन करके दे रहा है। करेक्ट, तो ये हमने क्या कर दिया, आई होप ये सारी आपको लाइंस क्लियर हैं। प्लॉट हम एक्स और वाई के बीच में कर रहे हैं, के स्टैंड्स फॉर द ब्लैक कलर, लाइन विड्थ 2, हम टोटल इसकी जो विथनेस है उसको 2 दे रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि आपका ग्रिड, ग्रिड मतलब ये जो पीछे आपके पास याद है ग्राफ पेपर में आपके पास लाइंस आती थी, वही वाली लाइंस यहाँ पे आ रही हैं, ये वाली जो लाइंस है। तो उसके लिए हम लोग कमांड लगा रहे हैं ग्रिड ऑन एक्स इज इक्वल, एक्स इज इक्वल मतलब ये जो आपके पास ग्रिड के अंदर ग्राफ के अंदर स्क्वायर्स बन रहे हैं ये स्क्वायर्स बने, ठीक है। अच्छा, एक्स इज इक्वल हो गया। टाइटल, टाइटल मतलब मैं यहाँ पे अपीयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या है, सर्कल। तो मैंने यहाँ पे दिया टाइटल सर्कल इन कार्टेशियन इक्वेशन, और मैंने वो इक्वेशन भी लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स लेबल को मैंने एक्स से डिनोट कर दिया, वाई लेबल को मैंने वाई से डिनोट कर दिया। तो ये है आपका एक्स लेबलिंग एंड वाई लेबलिंग। लास्ट में हमने क्या किया, एक्स की लिमिट लगाई कि एक्स जो है आपका -6 टू +6 वेरी कर जाए, और जो वाई एक्सेस है वो सिर्फ -6 टू +6 वेरी कर जाए, सो दैट you can have a clear view of your plotted circle. Correct? Okay, so this was my first code,
और ये कोड मेरे ख्याल से आपको आपके पुराने जो पहले 4 लेक्चर लगे हैं उसमें भी एक्सपर्ट्स ने करवाया होगा, बिकॉज सर्कल से स्टार्ट करना इज ऑलवेज इजी। बच्चों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड है और आपको बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ाना शुरू कर देते हैं सर्कल के बारे में। तो आई होप ये कोड आपके लिए क्लियर है। अगर कोई इश्यू है तो आप मेरे को बीच में रोक के पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट कोड में जा रहा हूँ। नेक्स्ट कोड में मेरा टारगेट क्या है? ये तो हो गया हमारे पास नॉर्मल सर्कल की इक्वेशन। नेक्स्ट मेरे पास ये है, मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन में सर्कल प्लॉट करना चाहता हूं। तो दिस इज माय टारगेट, सर्कल किस फॉर्म में? पैरामीट्रिक फॉर्म में, है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में। तो मेरे को पता है, चलो यही वाली सर्कल की एग्जांपल लेके हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्स क्या हो जाता है? आर कॉस टी, है ना। और y को मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? r sin t। इट मीन्स मेरा सर्कल प्लॉट हो सकता है अगर मैं बीच में एक पैरामीटर दे दूं। तो r आपका फिक्स है, r को से हम लोग 5 ही लेके चलते हैं। अब मेरे को t कितना वेरी करेगा? हाँ जी बताइए, अगर मैं ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना चाहता हूँ तो t कितने से कितने तक वेरी करना चाहिए? t शुड वेरी फ्रॉम 0 टू, कंप्लीट सर्कल मीन्स 0 टू 2 पाई। तो ये मेरे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, करेक्ट। अब मेरे को इसको मैटलैब में प्लॉट करना है। सबसे पहले तो मेरे को क्या डिफाइन करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मेरे को एज यूजुअल डिफाइन करना पड़ेगा रेडियस, करेक्ट। नेक्स्ट मेरे को क्या डिफाइन करना पड़ेगा? पैरामीटर। से पैरामीटर टी ले लो, थीटा ले लो, एक ही बात है। सपोज मैं स्टैंडर्ड नोटेशन ले लेता हूँ, से थीटा, और तो आपका थीटा, थीटा का मेरे को इतना पता है, थीटा 0 से 2 पाई के बीच में वेरी कर रहा है। तो मैटलैब में हम इस चीज को कैसे लिखेंगे? थीटा विल बी लीनियर स्पेस, है ना। कमांड क्या है इसके लिए? लिन स्पेस। स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी 0, एंड पॉइंट शुड बी 2 पाई। तो 2 लिखने का तरीका क्या? 2 स्टार पाई। ओके, व्हाट अबाउट कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स दे दे? हमारे हाथ में है से 500 पॉइंट्स हम लोग रख देते हैं, तो हमने थीटा बना दिया। अच्छा, थीटा को भी अब हम ऐसे तो लिख नहीं सकते कि सीधा थीटा सिंबल लिख देंगे, सो वी विल राइट इन इंग्लिश थीटा। तो ये हो गया ये। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी, वी वांट टू डिफाइन x एंड y इन मैटलैब। तो x क्या बनेगा? x इज इक्वल टू आर स्टार, स्टार मीन्स मल्टीप्लीकेशन, कॉस कौन सा? थीटा, और y आपके पास क्या बनेगा? आर स्टार साइन थीटा, और लास्ट में आपको क्या करना है? प्लॉट। प्लॉट किस किस के बीच में? x और y, और साथ में आपके पास कलर में k डिफाइन कर देता हूं। अगर आप चाहो तो लाइन विड्थ कर सकते हो, अगर नहीं भी लिखना तो इस कमांड का कोई एज सच वर्क नहीं है। बट लाइन विड्थ लिखने से मेरे को एक फायदा हो जाता है। वो फायदा क्या है? कि लाइन विड्थ से मेरा जो लास्ट ग्राफ बनेगा उसका अगर मैं प्रिंट आउट लूंगा तो वो अच्छा आएगा, क्योंकि लाइन विड्थ से आपके पास आप इसका फॉन्ट क्लियर कर सकते हो कि कितना आप फॉन्ट साइज रखना चाहते हो इसका ग्राफ करते हुए, करेक्ट। तो टोटल कर्व का कितना आप मोटाई रखना चाहते हो, दैट इज लाइन विड्थ। तो चलिए जब इस कोड को हम लोग बनाने की कोशिश करें, तो एक बार मैंने शायद बी लिखा हुआ है। ओके, चलो अच्छा है, टाइप है। अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा भी टाइप कर देता हूँ। तो क्या बनेगा बेटा? हम चाहते हैं सर्कल किसमें? पैरामीट्रिक फॉर्म में। और कैसे कैसे चाहते हैं? सबसे पहले r इज इक्वल टू 5, हमने रेडियस डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट थीटा इक्वल टू, अगर आप अलाउ करो तो मैं ऐसा करता हूँ, ऑलरेडी ये जो कोड है यहीं से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और हम कवर भी ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या है? सर्कल प्लॉट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो क्लियर ऑल और क्लियर एफ, आई थिंक पहली दो जो आपके पास लाइंस हैं ये क्लियर है। क्लियर ऑल मींस जो मैंने सर्कल पहले प्लॉट किया था उसमें जो भी सिंबल्स यूज किए, उन सब सिंबल्स को, जो भी मैंने वेरिएबल यूज किए, उन सबको मैं क्लियर कर रहा हूँ पहली कमांड में। CLF मतलब मैं क्लियर फिगर कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हो तो ये दोनों कमांड हमें लगा देनी चाहिए आपके कोड में। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग अभी
बड़े कोड्स में काम करते हैं। बड़े कोड्स मतलब जिसमें सिर्फ इतने से ग्राफ नहीं, हमने बहुत कुछ कंप्यूट करना है, तो उसमें हम लोग ये जो ऊपर वाली मैं 2 कमांड्स लिख रहा हूँ ये लगाने को अवॉइड करता हूँ, और जनरली मैं क्लियर ऑल क्लियर एफ जब चाहिए तो कमांड विंडो में टाइप कर देता हूँ। करेक्ट। तो आर इज इक्वल टू 5। आर इज इक्वल टू 5 क्यों? क्योंकि हमने रेडियस डिफाइन किया। थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? लिन स्पेस 0 to 1000, 1000 I think is too much. I think we can take 0 to 2 pi up to 500. That is angle from 0 to 2 pi. अच्छा, पैरामीट्रिक के x की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। पैरामीट्रिक y की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। नाउ वी नीड टू प्लॉट। तो मैं ऐसा करते हैं, अभी के लिए इसको भूल जाते हैं और सिर्फ इतनी सी चीज को प्लॉट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। सो दिस इज द आउटपुट। क्या प्रॉब्लम आई है अब इसमें? ना तो हमने ग्रिड्स लिखा, ग्रिड ऑन कर देते तो थोड़ा पीछे आपके पास ग्राफिकल पेपर जैसा आ जाता। ठीक है, करके देखते हैं एक एक कमांड। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद ग्रिड ऑन, कमांड लगाई तो ये ग्रिड्स आ गई हमारे पास। बट अभी भी ये सर्कल की तरह नहीं लग रहा। ये आपके पास कैसा लग रहा है? जैसे आपका इलिप्स है, मींस इसको मैंने ऐसे किया हुआ है एक्सटेंड, है ना? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक्सेस इक्वल नहीं की। देखो आपके पास ये जो बीच में ग्रिड के पास ये बन रहे हैं आपके, ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, दीज आर नॉट स्क्वायर्स। तो व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट एक्सेस इक्वल। करेक्ट। अब जब एक्सेस इक्वल किया तो देखो अब कैसा आया, दिस इज द सर्कल। अच्छा, फिर मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूं? मैं इसमें टाइटल कमांड दे सकता हूं, है ना? तो लेट्स राइट विथ टाइटल। से मैंने टाइटल का सर्कल, ये टाइटल आपके इस ग्राफ के ऊपर आ गया, है ना? ग्राफ दैट इज टाइटल। अच्छा, नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए? आई थिंक आई कैन लेबल, है ना? तो वी कैन राइट एक्स लेबल। एक्स लेबल को हम क्या कर दें? सिंपली कुछ भी लिख सकते हो। यू कैन सिंपली राइट एक्स, और यू कैन सिंपली राइट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड वाई लेबल भी कर देते हैं। वाई लेबल इज वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, इससे हमारे पास क्या है? अगर आप देखोगे ध्यान से, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये आ गया वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जो लेफ्ट में हमारे पास है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? ये जो साइड के गैप्स हैं हम इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए वी हैव एक्स लिम। एक्स लिम से हम कर देते हैं आपका माइनस 6 to 6, और वाई लेबल हम कर सकते हैं, सो वाई लिमिट इज अगेन से फ्रॉम -6 to 6। तो रन करें, एक सेकेंड, क्या कह रहे हैं ये? अच्छा, वाई लिम मैंने लाइन लिख दिया, इट शुड बी वाई लिम। देखिए, दिस इज योर फाइनल आउटपुट। आई होप ये आपको कोड ठीक है। इसमें अगर कोई इश्यू है यू मे आस्क, नहीं तो हम लोग फिर नेक्स्ट कोड पे जाएं। हाँ जी, कोई इश्यू इसमें? ओके, चलिए जी, फिर नेक्स्ट कोड पे चलते हैं। तो दिस इज सर्कल प्लॉट इन पैरामीट्रिक। तीसरा हमारे पास क्या है? हम लोग पोलर में जा सकते हैं, लेकिन पोलर में अगर आप ध्यान से सोचो, इस सर्कल के लिए पोलर इक्वेशन में ओके लेट मी, पोलर, पोलर में क्या होएगा? इंस्टेड ऑफ दिस पॉइंट एक्स कॉमा वाई, आपके पास क्या आ जाएगा? आर, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा? थीटा। तो पॉइंट पी आपके पास क्या था? एक्स वाई। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं? आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया पैरामीट्रिक में। तो इसका मतलब इस वाले के लिए आपके पास पोलर और पैरामीट्रिक आइडेंटिकल हैं, तो हम इसलिए इसका पोलर में नहीं जाएंगे। चलिए अब आपके लिए काम स्टार्ट करते हैं छोटा सा। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ये आउटपुट चाहिए। देखो जरा ध्यान से, मेरे को आपका एक ही ग्राफ के अंदर तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल चाहिए। आउटपुट मेरे को ऐसा कुछ चाहिए।
ऑब्वियसली विद अ डिफरेंट रेडियस। ठीक, तो डिफरेंट रेडियस मतलब यहाँ पे मैं कोई रेडियस डिफाइन करना चाहता हूँ, से रेडियस जैसे से आप कह लो जी R1 रेडियस ले लीजिए आप, कुछ भी ले लो, जैसे 5 एक ले लीजिए, तो 5 को मैं आउटर मोस्ट कर देता हूँ, दिस इज बेसिकली R इज इक्वल टू 5। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या कर लीजिए इसको, या चलो छोटे छोटे से ले लेते हैं, से हम R को 1 रख लें पहली बार, फिर R को 1.5 रख लें, फिर हम R को 2 रख लें। करेक्ट, तो बेसिकली मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि आपके पास 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने with 3 different radii, R is equal to 1, R is equal to 1.5 and R is equal to 2, और प्लस आपको एक लीजेंड भी प्लॉट करना है ये तीनों को दिखाने के लिए। समझ के नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है? चीज़ आसान है, बस इस बार इस क्वेश्चन में हमारे को ले दे के टोटल 3 बार सर्कल डिफाइन करना पड़ेगा। फिर मैं पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि इस कोड को लिखने का सिर्फ जो मैं आपको वे बता रहा हूँ वे आउट उसी वे में आप लिख सकते हो, आपके पास और भी कई तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के लिए, तो उसमें से वन ऑफ द मेथड वी आर डिस्कसिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 फंक्शन डिफाइन कर दें, तीनों को विद रिस्पेक्ट टू दिस वन प्लॉट कर दें, आई थिंक वी विल गेट द आंसर। करेक्ट। अच्छा, इसमें मैं कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा रहा कि आपने आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करनी है या आपने जो नॉर्मल इक्वेशंस आपके पास कार्टेशियन है वो यूज करनी है, ये आप लोगों की इच्छा है कि क्या आप यूज करोगे। ठीक है, चलिए जी लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कोड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले थीटा डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक, थीटा कैसे डिफाइन किया, मैंने कहा जी 0 to 100, ये हमने सबसे पहले अपना थीटा डिफाइन कर दिया 0 to 100। अब मेरे पास 3 तरह के रेडियस हैं, कौन कौन सा रेडियस, मैं पहले सबसे पहले इनर सर्कल की बात करना चाहता हूँ, दैट इज 1। फिर मैं आपके पास दूसरे सर्कल की बात करना चाहता हूँ जो आपका मिडिल सर्कल है 1.4 1.5, और लास्ट हम लोग किसके बारे में करना चाहते हैं, R इज इक्वल टू 2। ठीक, अब हमारे को क्या टास्क है नेक्स्ट हम लोग इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं 2 नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। पहला वेरिएबल कौन है आपका, z1 इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, और दूसरा वेरिएबल कौन मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, z2 इज इक्वल टू साइन थीटा। करेक्ट, क्योंकि ये इनके पैरामीट्रिक इक्वेशन है। प्लीज जरा साथ साथ में आप देखिए कि हम लोगों ने, चलिए मैं यहीं पहले लिख के समझाता हूँ। हमारे को 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं, तो 3 सर्कल के लिए सबसे पहले मेरे को थीटा वेरिएशन देनी पड़ेगी फ्रॉम 0 से 2 पाई, और फिर मेरे पास जो पहला सर्कल है यानी कि सर्कल 1 की बात कर रहा हूँ, तो सर्कल 1 आपके पास क्या बनेगा बेसिकली, क्योंकि रेडियस मेरे पास 3 है, एक रेडियस 1 रखा है, एक रेडियस हमने 1.1 रखा है, और एक रेडियस हमने 2 रखा है। सपोज कर लो रेडियस 1 को मैं A1 कह देता हूँ, रेडियस 2 को मैं A2 कह देता हूँ, और रेडियस 3 को मैं A3 कह देता हूँ। तो पहले सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, सर्कल की इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, सर्कल 1 आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ जी, x इज इक्वल टू A1 cos थीटा, y इज इक्वल टू A1 sin थीटा, दिस इज सर्कल 1। सर्कल 2 क्या बनेगा, x इज इक्वल टू A2 cos थीटा, y इज इक्वल टू A2 sin थीटा। ऐसे ही सर्कल 3 क्या बनेगा आपके पास, x इज इक्वल टू A3 cos थीटा, और y इज इक्वल टू A3 sin थीटा। आपको लग रहा ये वाला जो पर्सन है cos थीटा sin थीटा, ये मैटलैब में बार बार मेरे को लिखना पड़ रहा है, तो बेटर मैं इसको कुछ डिक्लेयर कर दूं। तो इसलिए हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं z1, z1 क्या हम रख देते हैं cos थीटा, और z2 हम क्या रख देते हैं sin थीटा। उससे हमें आसानी हो जाएगी। क्या बेनिफिट होएगा, बार बार हमें cos थीटा sin थीटा नहीं लिखना पड़ेगा। करेक्ट, यही चीज हमने यहाँ पे कोड पे लिखी हुई है। तो कोड में हम क्या कर रहे हैं,
थीटा इज इक्वल टू लिन स्पेस फ्रॉम 0 2 पाई अप टू 100। ए आपके पास रेडियस हो गया 1, 1.5 एंड 2। Z1 आपके पास हो गया cos थीटा साइन थीटा, और Z2 हो गया साइन थीटा बेसिकली। ओके, तो अभी अभी मैंने आपको बोला, तो सबसे पहले मेरे को x की टोटल 3 तरह से वेरिएशन ले रहा है। कौन कौन सी? A1 cos थीटा, A2 cos थीटा, A3 cos थीटा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लीज जरा देखिए इस चीज को। अब मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि x क्या है। ये जो आपके पास x है, ये एक मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली इट्स अ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है? कोई आप में से मेरे को बता सकते हैं कि x का ऑर्डर कितना होएगा? एनीवन बेटा, अगर कोई बताए। ओके, आप ध्यान से देखो, x1 का पहली रो में कौन बैठा है? a1 तो है आपके पास स्केलर, तो ये तो कुछ आपका इफेक्ट नहीं डालेगा। z1 क्या है? z1 आपके पास एक बेसिकली मैट्रिक्स है cos थीटा, और थीटा कितनी वेरिएशन ले रहे हैं? थीटा आपके पास टोटल 100 वैल्यूज ले रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये जो इसका पहला एलिमेंट है, ये है टोटल 1 क्रॉस 100। जो इसका सेकंड रो है, इट इज अगेन 1 क्रॉस 100। थर्ड रो अगेन कंटेनिंग 100 एलिमेंट्स। तो ओवरऑल एक्स आपके पास क्या बना? ओवरऑल एक्स इज अ मैट्रिक्स, देयर आर टोटल 3 नंबर ऑफ रोज एंड देयर आर टोटल 100 कॉलम्स। तो एक्स इज बेसिकली अ 3 क्रॉस 100 मैट्रिक्स, एंड वाई इज अगेन आपके पास बेसिकली अ 3 क्रॉस 100 मैट्रिक्स। करेक्ट? अगर आपका एक्स और वाई क्लियर हो गया, तो आई थिंक नाउ वी कैन जंप टू द प्लॉट पॉइंट। करेक्ट? तो प्लॉट तो हमारे पास बहुत आसान है। हाँ जी, किस किस को प्लॉट करना है हमारे को? सबसे पहले तो जी हम करना चाहते हैं एक्स का पूरी की पूरी पहली रो का प्लॉट हो जाए, है ना? तो आपको ऑलरेडी मैट्रिक्स में सिखाया गया होगा, आई थिंक दिलबाग सर ने एक बार आपको मैट्रिक्स समझाया, बाद में परमजीत सर ने भी। तो कितना हुआ? प्लॉट एक्स बेसिकली फर्स्ट रो एंटायर कॉलम्स। किसके साथ प्लॉट करना चाहते हो? हम इन दोनों के बीच में प्लॉट करना चाहते हैं, आपके इसके फर्स्ट से और y के इसके फर्स्ट से। तो कैसे होएगा? x फर्स्ट रो ऑल कॉलम्स, y फर्स्ट रो ऑल कॉलम्स, एंड कलर विथ ब्लैक। नाउ यू कैन यूज योर होल्ड ऑन कमांड, और वी कैन सिंपली राइट इन अ सिंगल इक्वेशन। सिंगल इक्वेशन में हम लिख सकते हैं, है ना? ये चीज आपको पता है ना? जैसे आप मान लीजिए प्लॉट 2 लिख रहे हो, से मैं ये प्लॉट करना चाहता हूँ, प्लॉट x1 with y1, and I can again want to plot x2 with y2. तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग दिस एक्स अगेन प्लॉट एंड प्लॉट ना, हम एक सिंगल कमांड में लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया प्लॉट x1 और y1 का इन ब्लैक कलर। फिर मैं नेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ? प्लॉट x2 और y2, मतलब x की सेकेंड रो और y की सेकेंड रो, और कलर कौन सा मैंने किया है? ब्लू कलर, बट विद सम स्पेशल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास शेडेड लाइन होगी, और प्लस ओ सिंबल जो है आपका, आपके सर्कल्स दिखेंगे वहां पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया? बेसिकली सॉलिड लाइन एस आर। ओके, लेट्स सी आपके पास कैसा दिखेगा इसका आउटपुट, सिर्फ इतना अगर हम रन करें तो दिस इज द आउटपुट। हमने तीनों सर्कल प्लॉट कर दिए, 3 बार हमने सर्कल को डिफाइन किया, और हमारे पास ये आ गया। लेकिन अभी इस प्लॉट में बहुत कमी है। पहली कमी क्या है? एक तो ये सर्कल की बजाय हमें इलिप्स दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अगर मैं ग्रिड ऑन की कमांड लगाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास जो पीछे लीजेंड्स हैं, पीछे जो आपके पास ग्रिड्स हैं, वो बेसिकली रेक्टेंगुलर हैं। करेक्ट? तो इसको हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक्स इज इक्वल, अब देखो सिर्फ ये वाली कमांड लगाई तो क्या इससे होगा आउटपुट? देखो जी, कंप्लीट सर्कल आपको दिखने लग गया। उसके बाद तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर टाइटल एटसेट्रा हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ। करेक्ट? तो ये मैंने क्या डिफाइन कर दिया? एक्स लेवल इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई लेवल इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स इज इक्वल ग्रिड ऑन। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट जो आपके पास समझना चाहिए आपको, दिस लीजेंड पार्ट। दिस लीजेंड पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ? एक आपके पास यहाँ के अंदर बॉक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसमें मैं रेडियस डिफाइन कर सकूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करके आप लोगों को दिखाऊं, तो दिस इज द आउटपुट।
आपके पास लीजेंड भी आ गया। लीजेंड क्या कह रहा है आपको, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1.5 एंड a इक्वल टू 2। तो देखो जैसे आप लोग किसी और सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हो कि आप लोगों ने जो आपके सर आपने अलग अलग शेड्स की हैं कर्व्स को, तो उनको हमने लीजेंड के थ्रू शो कर दिया। हाँ जी, किसी को कोई इश्यू है इसमें? सर्कल हमारे पास किसी स्टेप में या किसी लाइन में ये साथ में लाइन नंबर चल रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो यू में आस्क बेटा लाइन नंबरिंग में। इफ इट इज फाइन देन वी कैन आई थिंक मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमने अभी तक सर्कल कंप्लीट किया है, करेक्ट? तो लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। जस्ट अ मिनट, लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट बेटा। ओके, सो लेट्स कम टू योर सेकंड पार्ट। जस्ट अ मिनट, ये रहा। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट पैराबोला। पैराबोला फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल पैराबोला से स्टार्ट करते हैं। से पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है जी, 4ax। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करें? कार्टेशियन इक्वेशन में इसकी बात कर लें। कार्टेशियन इक्वेशन में प्लॉट करें। ओके, तो अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। देखो, या तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2ax, है ना, सॉरी 4ax, है ना, या वी कैन राइट 2 हियर। 2ax, ये तो हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर 1, कि हम लोग अपना कोड इस हिसाब से बनाए कि x को हम लोग इनपुट दें, वी कैन टेक इट एज अ इनपुट, और x को मैं y को डिफाइन कर दूं एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? बेसिकली फिर से मेरे को दो ब्रांचेस में डील करना पड़ेगा। कौन कौन सी ब्रांच में डील करना पड़ेगा? एक तो अपर ब्रांच और एक आपका लोअर ब्रांच, क्योंकि इसका ग्राफ तो यही बनेगा ना आपके पास, समथिंग लाइक दिस। तो इससे ऐसा करने की बजाय कि दो ब्रांचेस में डिफाइन करूं, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, तो रेदर हम लोग x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लेते हैं। तो मैं x को इन टर्म्स ऑफ y कैसे लिखूंगा? वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। तो इससे मेरे को दो ब्रांचेस में कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब मेरे को मैटलैब में ये कोड लिखने के लिए y को एज अ इनपुट करना पड़ेगा और x को एज अ आउटपुट लिखना पड़ेगा। इज इट फाइन? तो करके देखें, x को एज अ इनपुट, सॉरी y को एज अ इनपुट और x को एज अ आउटपुट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को कैसे मैटलैब लिखना पड़ेगा? मेरे को सबसे पहले तो जी a डिफाइन करना पड़ेगा कि a कितना रखना चाहते हो इस पैराबोला के लिए। तो से फॉर द टाइमिंग मैं a की वैल्यू 2 रख लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मेरे को क्या डिफाइन करना पड़ेगा? y को डिफाइन करना पड़ेगा कि y आपके पास कैसे रख सकते हो। सपोज कर लो मैं y को ये रखता हूँ, लिन स्पेस फ्रॉम -20 to 20 से बीच में कितने का गैप रख दूं? 100 का गैप। इसके अलावा कोई मेरे पास इक्वलेंट कमांड हो सकती है? और कौन सी कमांड लगा सकता हूँ? आई होप आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। मैं जान के इस कोड में ना लिखते हुए दूसरी कमांड लगाऊंगा ताकि आप लोगों को इस कमांड का भी आइडिया हो जाए। तो दूसरी कमांड क्या हो सकती है? -20 से कुछ गैप स्टार्ट कर लीजिए, से 1 का गैप कर लेते हैं। आई थिंक 1 विल बी मोर देन इनफ, है ना। तो यू कैन राइट -20 to 20। तो आप ना इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। दोनों का मतलब बेसिकली आप y के लिए पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हो फ्रॉम -20 to 20, हेयर विद द गैप ऑफ 1, हेयर विद द टोटल 100 पॉइंट्स। और तीसरा मेरे को क्या डिफाइन करना पड़ेगा? x। अब ये बताओ, अगर मैं ये लिखता हूँ वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 ए, मैटलैब में एरर आएगी या मैटलैब रन कर देगा? एक्चुअली मैटलैब मेरे को एरर देगा। रीजन क्यों एरर देगा? बिकॉज आपका जो y है इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। जो आपका y है ये तो एक मैट्रिक्स बन रहा है ना आपके पास। अगर इस y की बात करो, इट विल बी अ 1 × 100 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का तो ऐसे सिंपल स्क्वायर नहीं होता, बिकॉज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर अलाउड है, करेक्ट।
तो इसके यहाँ पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, y डॉट स्क्वायर। बस अब तो बड़ा आसान है, क्या करना है, प्लॉट x कॉमा y, और आपके पास ये ग्राफ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऐसा करें, इसको स्टार्ट करके देखें कि कैसे ये कोड लिखा जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, रीज़न मैंने टाइपिंग आप लोगों के लेक्चर से पहले कर ली थी। मेरे को दिलबाग सर ने बताया था कि शायद आपके काफ़ी कोड्स अभी पेंडिंग हैं, तो एक बार थोड़ा ज़्यादा कवर करवाना। ओके, चलिए जी, तो ये वाला कोड ऑलरेडी मैंने लिखा, एक बार इसको समझ लेते हैं क्या है। बहुत आसान है, और मैंने साथ में एक्सप्लेनेशन भी लिखी है कि क्या चीज़ है। ओके, सबसे पहले क्लियर ऑल की कमांड मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि मैं चाहता हूं जितने भी पुराने सर्कल के कोड्स थे उसके साथ जितने भी एसोसिएटेड वेरिएबल्स थे उन सबको मैं क्लियर कर पाऊं। उसके बाद एज यूजुअल मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर कि हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली y इज वेरिंग फ्रॉम -20 to 20 विद अ गैप ऑफ 1। ये 1 हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि इससे अगर ग्राफ हमारा स्मूथ नहीं बना तो वी विल चेंज इट। ओके, और उसके बाद मैंने तीसरे में क्या डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन किया, क्या, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वैसे इन ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। करेक्ट, आई थिंक आप इन चीज़ों को भी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला। ओके, अब मैंने तीसरा चीज़ क्या लगाया, प्लॉट लगाया। प्लॉट किस किस के बीच में, x और y के बीच में, और लाइन विड्थ कितनी रख दी मैंने इसकी 2। ग्रिड ऑन, x लेबल x, y लेबल y, टाइटल मैंने दे दिया है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फाइन, चलिए जी देखिए एक बार क्या इसका आउटपुट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम कह रहा है, क्या कह रहा है जी ये प्रॉब्लम, क्लियर ऑल CLC। ओके, ये y को ये प्रिंट करवा रहा है, उसका तो कुछ नहीं, लेकिन इसका ग्राफ कहाँ है, ये रहा ग्राफ है, दिस इज द आउटपुट। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो ये आया आपके पास पैराबोला का आउटपुट। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर है। तो दिस इज द आउटपुट। अगर आप चाहो तो इस आउटपुट को थोड़ा सा और हम एनहांस कर सकते हैं। कैसे, हम लोग x की लिमिट यहाँ पे कर देते हैं, x से x की लिमिट फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट से 0 to up to 40 only, then we can see the change in the graph। तो x आपका 0 to 40 के बीच में ऐसा प्लॉट हो रहा है। हाँ जी, क्लियर। तो दिस इज अ पैराबोला विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सबसे आसान, सर्कल से भी ज्यादा आसान कौन हुआ, पैराबोला प्लॉट करना। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या है कि इस पैराबोला को अलग अलग फॉर्म्स में किया जाए। अभी तो हमने क्या किया है, सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में किया है। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे आपके पास पैराबोला यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म। तो करें इसके बारे में। तो लेट मी टेक माय अनदर पेज। हाँ जी, तो नाउ आई हैव वाई स्क्वायर, अरे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका पैरामीट्रिक क्या बनेगा फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म it will be x is equal to 80 square and y is equal to 280। यही होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन। अगर पर्टिकुलर मैं इसकी बात करूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो इसके लिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बन जाएगी, 2t स्क्वायर, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेसिकली 4t, है ना, नॉर्मल पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर इस वाले क्वेश्चन को हमने प्लॉट करना है तो सबसे पहले हम कॉर्ड कैसे स्टार्ट करेंगे, सपोज इसी के लिए करते हैं। तो पहले तो हम a तय करते हैं कि a हमारे पास कितना है, 2। नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग अपना जो पैरामीटर t है इसको डिफाइन करेंगे कि t आप कितने से कितने के बीच में रखते हो। मैं सिर्फ एक हिट एंड ट्रायल ले रहा हूँ, से t आपका -5 से स्टार्ट होके अप टू जा रहा है से +5, बीच में गैप मेरे हाथ में है, तो गैप हम रख लेते हैं से 0.1 अप टू 5। और उसके बाद x डिफाइन करना है, तो x कितना हो जाएगा, a स्टार t डॉट स्क्वायर, क्योंकि t नाउ इज अ इन द मैट्रिक्स फॉर्म, है ना, तो ये स्केलर नहीं है। y क्या हो जाएगा ऐसे आपका 2
स्टार ए टी, ये हो गया आपका एक्स और वाई। अब आपको क्या करना है, सिंपली प्लॉट एक्स कॉमा वाई। ऑब्वियसली यू कैन ऐड अनदर ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कलर डिफाइन कर सकता हूँ के साथ, मैं इसमें लाइन विड्थ डिफाइन कर सकता हूँ जितनी भी मैं रखना चाह रहा हूँ, 2 या 3, ये सब, ये सारी जो ऑप्शन है ये मेरे हाथ में है कि लाइन विड्थ रखना चाहते हो तो लाइन विड्थ रख लो, ये हम हर एक में अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो मेन हमारा जो कोड है वो सिर्फ इतनी लाइंस का है, टोटल 5 लाइंस में कोड है ये। हमने पैराबोला को लिखा है इन पैरामीट्रिक फॉर्म, करेक्ट। चलो जी करके देखिए एक बार क्या बनेगा इसका। यही मैंने लिखा हुआ है, क्लियर है, वही जो मैंने अभी आपको टाइप मतलब हाथ से लिख के बताया, वही मैंने कोड ऑलरेडी टाइप किया था। तो क्या है क्लियर ऑल, क्लियर ऑल की अगेन हमारा पुराना सारा हिसाब, जितने वेरिएबल है उनको डिलीट करने के लिए, सारी फिगर्स पुरानी डिलीट करने के लिए, ए मेरे पास जो ये इसकी विड्थ है उसको मैं ए ले रहा हूँ, ए को 2 ले रहा हूँ, -20 to 20 क्योंकि मैं वाई को डिफाइन कर रहा हूँ, और फिर मैं एक्स को एज अ फंक्शन मतलब एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिख रहा हूँ। प्लॉट क्या किया एक्स और वाई का, लाइन विड्थ रख दी 2, ग्रिड ऑन कर दी, एक्स लेबल एक्स रखा, वाई लेबल वाई रखा, टाइटल आया एक्स इज इक्वल आई, और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो दिस इज द आउटपुट बेटा। आई होप पैराबोला सबसे आसान है क्योंकि पैराबोला को हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इज इट फाइन? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हमने लास्ट करना है, लास्ट क्या करना है हमने, पैराबोला को इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास क्या हुए हैं, एक कार्टेशियन हो गया, और नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया पैरामीटर वाला। पैरामीटर वाले में यही रखा हुआ है बेटा मैंने, 0.2 to 0.1, ठीक। एक बार देखें इसका आउटपुट भी क्या आएगा। हाँ जी, तो दिस इज द आउटपुट, सॉरी ये है पैरामीटर वाला। ए को 2 रखा है, टी को हमने क्या किया है, पैरामीटर -5 से +5 विद अ गैप ऑफ 0.1, x is equal to 80 square, y is equal to 280, simple plot, and this is our answer. Is it fine? ठीक है, ओके। सो एक सेकेंड बेटा, इसको ना मैं किसी और स्क्रीन पे कर देता हूँ, जस्ट वेट। हाँ जी अभी ठीक है आई थिंक। ओके सो बेसिकली दिस इज द आउटपुट। एक सेकेंड, ये आउटपुट नहीं शो हो पा रही, या नाउ इट्स फाइन। हाँ जी, तो क्या हुआ आपके पास, एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर 280। आई होप बेटा मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है, क्योंकि मैं बार बार स्क्रीन को कभी नोटपैड पे लेके जा रहा हूँ, कभी मैटलैब सॉफ्टवेयर पे। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यस सर। ओके जी, ठीक है। तो ये हमारा है आउटपुट। अच्छा अब मेरे को आइए लास्ट थर्ड वाले में, जो है हमारे पास पोलर फॉर्म में। ठीक है, पोलर फॉर्म को एक बार डिस्कस करते हैं कि पोलर फॉर्म में हम कोनिक सेक्शन कैसे करते हैं। एक बार मैं आपको पोलर फॉर्म का हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे पैराबोला के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, इलिप्स और हाइपरबोला के लिए हम ज़्यादा इसको जाएंगे। तो क्या होता है, आर इज इक्वल टू एल अपॉन 1, है ना, प्लस माइनस ई कॉस थीटा, या फिर प्लस माइनस साइन थीटा, यही होता है ना आपका। रीजन प्लस माइनस क्यों लगता है, क्योंकि अगर आपको याद हो आपके पास 4 ब्रांचेस हैं, एक ये साइन थीटा के लिए अपर और लोअर, यही 4 ब्रांचेस बनती है आप लोगों के पास। अगर मैं प्लस लेके चलता हूं, फॉर एग्जांपल पैराबोला के केस में ई की वैल्यू सिंपली 1 हो जाती है ना, इलिप्स के केस में ऑब्वियसली लेस देन 1, और आपके हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली आपका आर बनता क्या है, एल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। प्लस का मतलब जो मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड है, यही होता है इसका मीनिंग। ये मेरे पास पैराबोला है और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फोकस, तब हम प्लस करते हैं, है ना, प्लस साइन फॉर डायरेक्ट्रिक्स जो आपके पास है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। किसके लेफ्ट हैंड साइड के, आपके फोकस के। अगर मैं यही यहाँ पे नेगेटिव ले लेता तब आपके पास क्या हो जाती, राइट हैंड साइड। फिर आपके पास अगर नेगेटिव ले लेते तो ये वाला बन जाता, ऐसा वाला पैराबोला। ये डायरेक्ट्रिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एज डायरेक्ट्रिक्स, और ये है आपके पास
फोकस। तो ये तो चलो होगी आपके पास पोलर फॉर्म की हल्की सी जानकारी। तो अब हम आते हैं इसको प्लॉट करने के लिए मैटलैब में कैसे किया जाए। चलिए लेट स्टार्ट, हम यही वाले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि एक हमने स्टार्ट कर लिया, इसी से स्टार्ट करते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में देखो x की वैल्यू क्या होती है आपके पास, r cos थीटा, और पोलर फॉर्म में y की वैल्यू r sin थीटा। जरा ये सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4ar cos थीटा। इट मीन्स r इज इक्वल टू 4a cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज योर पोलर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। कौन सा पैराबोला, ओरिजिनल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर ये चीज़ अब हमने मैटलैब में लिखनी है तो अब हम कैसे करेंगे। तो मैटलैब में लिखने के लिए सबसे पहले तो एज यूजुअल हमें a डिफाइन करना पड़ेगा। a को कुछ भी ले सकते हो आप, a को 1 2 जो मर्जी ले लो। फॉर एग्जांपल से a को मैंने 1 ले लिया। नेक्स्ट ये है थिंग थीटा। अब थीटा मेरे को बताइए, लिन स्पेस अगर मैं लूं, इतना तो मेरे को पता है कि अगर मेरे पास पैराबोला ये बन रहा है तो इट विल बी फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव, है ना, -π/2 से पॉजिटिव π/2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब आपके पास π/2 में प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि आपके पास नीचे कौन पड़ा हुआ है, साइन स्क्वायर, और पूरा मैं जा भी नहीं सकता, नहीं तो वो इन्फिनिटी पे टच कर देगा। तो इसलिए लिन स्पेस हम क्या कर रहे हैं, मतलब -π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हम क्या कर लें, कोई एक नंबर डिफाइन कर लेते हैं, से 0.00001, थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। और कहाँ तक जाना है मेरे को, π/2 से थोड़ा सा 0.001। वैसे इस वाले आपकी इक्वेशन में प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर मैं पूरा भी ले लूँ तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आनी चाहिए। ओके बेटा लेट्स ट्राई, है ना, मैथमेटिकली हम बाद में देखते हैं। चलिए क्या बनेगा इसका, तो लेट मी ट्राई, मेरे को ये टाइप ही करना पड़ेगा। तो लेट स्टार्ट से ए का वैल्यू मैंने 1 कर लिया, उसके बाद आपका थीटा, थीटा हम लोगों ने रख दिया लिन स्पेस से -π/2। पहले हम ये गलती पकड़ते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या एरर आई और क्यों आई। 500 मैंने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लिए, और आर अभी अभी हमने कितना बनाया था, 4a cos थीटा। तो आई शुड राइट 4 टाइम्स a टाइम्स cos थीटा डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइड कौन सा होएगा, डॉट डिवाइड, क्योंकि मैं डिवाइडेड बाय भी साइन स्क्वायर कर रहा हूं, है ना। तो मेरे को क्या लिखना चाहिए, साइन थीटा स्क्वायर, स्क्वायर मतलब डॉट स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया आपका आर डिफाइन। अच्छा वो मेरे को दिखानी पड़ेगी, क्या होता है जी, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा डॉट लगेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास फिर से मैट्रिक्स बन रही है। y इज इक्वल टू क्या होएगा, आर डॉट साइन थीटा, और लास्ट में मेरे को चाहिए प्लॉट, तो से प्लॉट x कॉमा y। देखिए सिर्फ इतना सा कोड लिख के, सो इसको सेव करना पड़ेगा मेरे को। ऐसा करते हैं हम लोग, प्रेजेंटेशन में ही कर लेते हैं। प्रेजेंटेशंस ये वाले में कर लेते हैं, से इसका नाम रख देते हैं बी अंडरस्कोर पैराबोला। लेट्स सी, हाँ जी बेटा ये आउटपुट आ गई, ठीक है। अब ये आई है हमारे पास प्रॉब्लम, देखो सोचो ध्यान से, प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास, ये जो आपके पास लाइन आ रही है ये एक्स्ट्रा आ रही है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था जब मैं वहां पे आपका लिख रहा था। क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं -90 और +90 दोनों पे अपना थीटा लेके जा रहा हूं, दिस इज द इश्यू, करेक्ट। तो वो क्या कर रहे हैं, एकदम से मेरे को ऐसे सीधा दूसरे पॉइंट पे आ रहा है जंप करके, है ना, -π/2 से π/2, ये इसने जंप किया मेरे लिए। तो ये जंप को मैं अवॉइड करना चाहता हूं। तो जंप को अवॉइड किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जब मैं -π/2 पे पहुंचता हूं वहां पर,
और फिर मैं एकदम से जब π/2 लास्ट में पहुंचता हूं वहां पे, तो अवॉइड कैसे किया जाए? मेरे को अपने में से -π/2 के थोड़ा बहुत माइन्यूट आगे से चलना चाहिए, और π/2 से पहुंचने से पहले मेरे को रुक जाना चाहिए, है ना? यही है हमारा। तो इसलिए मैंने वहां पे आपको लिखा था कि यहाँ पर ये जो लाइन मैं लिख रहा था कि आपको -π/2 के थोड़ा आगे से चलना चाहिए, और ऐसे ही π/2 तक आपको पूरा नहीं पहुंचना। दिस इज द इश्यू जो मैं आपको इस ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहता था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, क्योंकि यही आपके पास प्रॉब्लम है ना, ये जो आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म बनी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वो जीरो को अवॉइड कर रहे हैं जब आपका कॉस जीरो पे जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। देखिए फिर इसका कोड अब क्या बनेगा। ओके जी, तो यहां पर मैंने अवॉइड कर दिया। आई होप अब ये लाइन आप लोगों को क्लियर है। -π/2 से मैंने थोड़ा सा आगे से स्टार्ट किया, 0.01 प्लस कर दिया, और π/2 से पहुंचने से पहले मैंने उसको खत्म कर दिया। ये जो आपके पास छोटा सा गैप है, ये हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे, हाइपरबोला के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो वही है आपका आर, ये रहा आपका कन्वर्जन, ये तो हमें पता ही है, सिंपल आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। प्लॉट किया तो आपके पास आउटपुट कैसी आएगी, तो दिस इज द आउटपुट। देखा, इंटरेस्टिंग ग्राफ है। इसमें हमारे को थोड़ा मैथमेटिकल कंटेंट पता होना चाहिए कि 90 डिग्री पे, यानी कि -90 और +90 पे व्हाट इज द इश्यू मैथमेटिकली। और तो मतलब कोड ठीक है, कोड इज फाइन, कोड के लिए तो आपको कमांड चाहिए, बट प्लस वी शुड हैव सम काइंड ऑफ मैथमेटिकल बैकग्राउंड, मैथमेटिकल नॉलेज कि हमारे को प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी। तो आई होप ये कोड अब आप लोगों को क्लियर है। इट्स अ इजी कोड। हमने क्या किया, +-90 से +90 को अवॉइड किया। लास्ट तो नॉर्मल है, हमने प्लॉटिंग की है, ग्रिड ऑन की है, एक्स इज इक्वल किया है, एज यूजुअल टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, एक्स लिमिट, वाई लिमिट, ये हमने बस इसको प्लॉट करते हुए ये दिखाया है, क्योंकि नीचे वाली चीजें तो होती है, मेन तो आपका यही सारा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कोड है, उसके बाद तो आप जो मर्जी करते रहो, ग्रिड ऑन, एक्स इज इक्वल। तो ये तो सारी ब्यूटिफिकेशन का प्रोसेस है। तो मैथमेटिकल और आपका जो बेसिकली मैथमेटिकल नॉलेज है और ये आपका कोड है, वो यही बस सिर्फ 4-5 लाइन्स है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को पैराबोला क्लियर है। पैराबोला हमने पोलर फॉर्म में कर दिया। अब अगर याद हो, सर्कल के केस में हमने लास्ट में क्या किया था, हम चाहते थे कि एक साथ हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने। तो इस बार हम क्या चाहते हैं, एक बार हमारे पास कॉन्सेंट्रिक पैराबोलाज बने। एक पैराबोला, 2 पैराबोला, 3 पैराबोला, सो ऑन, जितने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे कैसा ग्राफ बनवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक ग्राफ ऐसा बने जिसमें कॉन्सेंट्रिक पैराबोलाज हों, और प्लस यहाँ पे मैं लीजन के थ्रू डिफाइन करूँ कि ए की वैल्यू डिफरेंट क्या है, क्योंकि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में बेसिकली आपकी पैराबोला की विड्थ चेंज हो रही है, और विड्थ आपका कौन सा पैरामीटर तय करता है, किससे होता है, आपके ये वाले फोकस आपका कहाँ है, उससे आपका विड्थ पता लग जाएगा। करेक्ट, क्योंकि आपको पता है ना, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है वो बेसिकली क्या होती है आपके पास, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज बेसिकली योर फोकस से जो आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो वो आपके पास क्या होता है, लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टम इज ऑलवेज इन केस ऑफ पैराबोला इट इज 4a। करेक्ट, आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए जी, फिर हम नेक्स्ट करें इसको प्लॉट करने की कोशिश। तो लो ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। चलिए जी, एक बार देखें, एक एक लाइन करके समझते हैं। तो पहले तो हम ये आउटपुट देखते हैं कि हम चाहते क्या हैं कि आउटपुट कैसी बने। लेट्स रन दिस कोड। तो आउटपुट ये रही हमारे पास आउटपुट। ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूँ आपका जो आउटपुट आए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने टोटल 4 पैराबोला ड्रॉ किए हैं, 2 राइट हैंडेड है और 2 आपके पास लेफ्ट हैंडेड है। देखो पैराबोला के केस में राइट हैंडेड पैराबोला फॉर्म, मतलब अगर आपका वर्टेक्स ओरिजिन है तो आपका जो फोकस है वो राइट साइड बैठा हुआ है ना। तो इन दोनों पैराबोला के लिए जो आपका फोकस है वो राइट साइड बैठा हुआ है, और जो ये 2 पैराबोल है इन दोनों के लिए फोकस आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो मेरे को अब चाहिए क्या कि मैं इसको प्लॉट करूं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लियर ऑल CLF, क्लियर फिगर, और से अप टू 100 पॉइंट्स, -20 to 20 अप टू 100। हाँ जी, अब मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए की वैल्यू 1 रखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, A1। करेक्ट, और उसके बाद मैं फिर क्या करना चाहता हूँ, सेकेंड वैल्यू रखना चाहता
हूँ -1, तो इसको कर दिया A2, क्योंकि A2 ऑटोमेटिकली माइनस वैल्यू लेगा। A1 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो मैट्रिक्स 1, A2 मीन्स सेकेंड एलिमेंट ऑफ रो मैट्रिक्स A, ऐसे ही A3 एंड A4। तो ये तो हमारा हो गया जी X। तो y हमने शुरू में दिया था x, ये आया। अब तो सिंपल प्लॉट करना है। अब ये अच्छा चीज़ है, प्लॉट कैसे होएगा। सबसे पहले मैं x की पहली रो को करना चाहता हूँ, किसके साथ, y के साथ। सिमिलरली सेकंड रो को, सिमिलरली थर्ड रो को। करेक्ट, कितना आसान बना। तो ये हमने जब पुट करके इसको रन किया तो दिस इज आवर आउटपुट। ये हमारे पास आई आउटपुट। एक टोटल कितना आउटपुट आया। तो दिस इज फॉर द केस ऑफ पैराबोला। आई होप ये पैराबोला आप लोगों को क्लियर हो गया। पैराबोला इज अ इजी थिंग। अब हम आते हैं तीसरी चीज पे। पैराबोला के बाद नेक्स्ट किस पे जा सकते हैं हम लोग, कोनिक सेक्शन पे, इलिप्स, है ना। फाइनली हम लोग हाइपरबोला पे आएंगे। तो लेट्स कम टू योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलिप्स। तो इलिप्स के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं कि इलिप्स के लिए क्या करना पड़ेगा। बेटा अगर कोई डाउट है तो आपको लगे कि मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही है, आपको कोड नहीं क्लियर हो रहा, तो आप मेरे को तभी स्टॉप कर सकते हैं इन बिटवीन, और हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई इश्यू है तो। हाँ जी, सो चलो लिखें। नेक्स्ट है, वी विल टॉक अबाउट इलिप्स। ऑब्वियसली इलिप्स की हम तीनों फॉर्म की बात करेंगे। कार्टीशियन, जैसा हमने पैराबोला के केस में किया, उसके बाद फिर आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म, और थर्ड आपकी पोलर फॉर्म। इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप पे आते हैं कार्टीशियन फॉर्म में। ये हम कर्व ट्रेसिंग कर रहे हैं बेटा, और मैं स्टैंडर्ड कर्व्स ले रहा हूँ जो ऑलरेडी आप लोगों को आती हैं। बाद में थोड़ा सा हम इस पे एडवांस पे जाएंगे। कार्टीशियन फॉर्म मेरे ख्याल से आपके पास जो नॉर्मल है, दिस इज एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप देखो ध्यान से, y की दो वैल्यूज बनेगी। कौन सी दो वैल्यूज बनेंगी, b टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैंने कोड लिखना है तो मेरे को y की दो ब्रांचेस डिफाइन करने पड़ेंगी। एक अपर ब्रांच, मतलब जिसको आप बोल देते हैं टॉप ब्रांच, और एक आपका बॉटम ब्रांच। क्योंकि जैसा हमने सर्कल के केस में देखा था, एक तो हमारे को ये ब्रांच चाहिए विच इज़ बेसिकली पॉजिटिव ब्रांच, जिसको आप टॉप ब्रांच कह सकते हैं, और एक आपने को इलिप्स के लिए ये ब्रांच चाहिए विच इज़ बेसिकली नेगेटिव ब्रांच, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों ब्रांचेस चाहिए। तो कोड कैसे लिखा जाएगा। कोड के लिए जी सबसे पहले तो मेरे को ए और बी डिफाइन करना पड़ेगा। ए को कुछ भी ले लो, से ए इज इक्वल टू 5 ले लिया। बी को आप कुछ भी ले लीजिए, से फॉर द टाइमिंग बी इज इक्वल टू 3 ले लिया। और तीसरा अब हमारे को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, वेरिएबल। वेरिएबल किसको ले लें, अगर हम y एज अ फंक्शन ऑफ x रख रहे हैं तो x को हम एज अ इनपुट पैरामीटर ले लेते हैं। तो इनपुट पैरामीटर x को रख लिया, लिन स्पेस। हाँ जी, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये वाला इलिप्स है जिसमें आपका ये है -5 और ये है आपका +5, तो सिंपल सी बात है, x जो है आपका -5 टू +5 वेरी करेगा। करेक्ट, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिन स्पेस x इज वेरिंग फ्रॉम -a टू a। से टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हम स्मूथलेस के लिए 500 रख लेते हैं। नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए, y का टॉप एंड। तो y का टॉप एंड क्या बनेगा, y अंडर को टॉप, मतलब मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है आपके पास अपर कर्व, अपर ब्रांच के लिए, है ना। तो क्या बनेगा आपके पास, b स्टार स्क्वायर रूट, हाँ जी, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस क्या आएगा, x डॉट स्क्वायर। क्यों लगा डॉट, बिकॉज जो आपके पास x है दैट इज बेसिकली अ मैट्रिक्स, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अच्छा, और y आपके पास लोअर ब्रांच को चलो आप बॉटम लिख देते हैं। y बॉटम क्या बनेगा, इसी के आगे जस्ट नेगेटिव लग जाना है, -b स्टार विद दिस एंटायर थिंग। करेक्ट, अगर सिर्फ इतना सा करें। अच्छा, लास्ट में तो बस सिर्फ प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट क्या क्या करना है, एक तो आपका x का y टॉप के साथ, होल्ड ऑन, और एक आपको क्या करना पड़ेगा, प्लॉट x का y के बॉटम ब्रांच के साथ, यही करना पड़ेगा।
तो हमारे को ऐसा कुछ डेवलप करना है। देखो कितना आसान सा कोड बनेगा। ए डिफाइन करना है, बी डिफाइन करना है, उसके बाद एक्स को डिफाइन करना है। एक्स को डिफाइन करने का मतलब आप इनपुट पैरामीटर को बता रहे हो कि इनपुट पैरामीटर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फिर आपकी अपर ब्रांच और फिर आपकी लोअर ब्रांच। बस आप लोगों ने ये करना है। तो दिस इज प्लॉटिंग थी। इज इट फाइन? चलिए जी प्लॉट करके देखते हैं। तो लेट्स कम टू आवर मैटलैब। तो एक बार के लिए मैं ये क्लोज कर देता हूँ। सर्कल्स हो गए हैं। तो लेट्स कम टू योर इलिप्स पार्ट। इलिप्स देखो, हाँ जी इलिप्स है। ओके सो हेलो। ओके तो ये रहा हमारे पास इलिप्स का आउटपुट। कैसे आएगा? अभी अभी मैंने कोड वहां पे आपके पास लिखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर ऑल क्लियर एफ, ये तो एज यूजुअल हमारे पास कमांड्स हैं क्लियर ऑल क्लियर एफ की। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3 और एक्स इज इक्वल टू हमने लिन स्पेस लिया है कितना, फ्रॉम माइनस ए टू ए, टोटल 500 पॉइंट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन बेटा। उसके बाद फिर वी वांट टू टॉक अबाउट एक्स का अपर ब्रांच और एक्स का लोअर ब्रांच। अगर आप मेरे को अलाउ करो तो मैं इसको इससे शो कर देता हूँ, तो आगे आपको पता लग जाए कौन से कमांड पे क्या हो रहा है। ये है एक्स का अपर ब्रांच और ये है एक्स का लोअर ब्रांच, और मैं इसको सर्कल के थ्रू भी दिखा सकता हूँ। हाँ जी, एक्स का अपर और एक्स का लोअर ब्रांच। कैसे? हमारे को देखो एक्स तो वही वेरी करेगा, एक्स विल वेरी फ्रॉम -5 to 5, लेकिन जो वाई है, ये जो प्लस माइनस, मैं इनको अपर और लोअर कह रहा हूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। वाई मतलब अपर, मतलब अपर हाफ, और ये लोअर हाफ। तो क्या बनेगा? दिस विल बी अपर वन, दिस विल बी और लोअर वन। हाँ जी क्लियर? ओके सो नेक्स्ट प्लॉट। प्लॉट हमारे पास कैसा होएगा? एक्स वाई टॉप एंड प्लॉट एक्स वाई बॉटम। ठीक है जी। ग्रिड ऑन एक्स इज इक्वल एक्स लेबल वाई लेबल। प्लीज बेटा अगर लगे आपको मेरे से फास्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल सी चीज़ है, बट आप में से कोई अगर स्टूडेंट को फील हो रहा है कि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बहुत फास्ट है, तो आप मेरे को स्टॉप करके पूछ सकते हो कि अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर किया हो। वैसे ये +1 +2 के लेवल के अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत हम हायर क्या बेटा? हेलो, एक मिनट मेरे को देख लेने दो। बेटा मेरे को समझ नहीं आया एक्चुअली। Is there any problem? मैम मेरी तरफ से कोई आवाज मेरा क्लियर है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? हेलो। I think clear. ओके ओके ठीक है मैम, थैंक यू। This ठीक है तो दिस इज क्लियर ऑल। तो हमने ए डिफाइन किया, बी डिफाइन किया, नॉर्मल है ये तो। एक्स आपका हो गया -a to a, हमने वाई टॉप वाई बॉटम और हमने इसको सिंपल प्लॉट किया। आई होप ये चीज क्लियर है। अब हम मेन आते हैं पैरामीट्रिक। देखो आपका जो कार्टेशियन है और पैरामीट्रिक है आसान है, उसके बाद जब हम लोग आएंगे इसके पोलर फॉर्म में, उस समय हम थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं अभी आपका सर आपका कैमरा ऑफ है। क्या बेटा? सर आपका कैमरा ऑफ है। नहीं नहीं, मेरी स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही क्या? सर ठीक है, स्क्रीन भी दिखाई दे रही है, ओके कोई ओके प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। But please check your connection if ओके any problem is there. इलिप्स, इलिप्स को अब हम करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म में देखो बड़ा आसान है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हमने बहुत बार ये काम किया मैथ्स में। तो हम एक्स को क्या ले सकते हैं? ए कॉस थीटा, और वाई को क्या ले सकते हैं? बी साइन थीटा। सिंपल। तो अगर मेरे को ये कोड लिखना पड़े तो मेरे को किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले ए और बी तो मेरे को लिखने ही पड़ेंगे। कैसे? से वही वाली सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ए को 5 देना पड़ेगा, बी को मैं चलो फिर से अगेन टी ले लेता हूँ। तीसरा हमारे पास कौन सा है? ये वेरिएबल। ठीक है, तो आपके पास थीटा जो है इसको हमें लेना पड़ेगा से लिन स्पेस, कितने से?
ऑब्वियसली पूरा का पूरा अगर मेरे को इलिप्स कवर करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो आपका पैरामीटर है तभी आपका एक्स पूरा का पूरा सर्कल लेगा, तो इट शुड बी एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन टेक से अप टू 500। अच्छा, फिर आपको एक्स डिफाइन करना पड़ेगा, ए स्टार कॉस टी, ये तो बहुत ही आसान हो गया, और y डिफाइन करना पड़ेगा b स्टार साइन टी, क्योंकि अगर देखा जाए इलिप्स और सर्कल का लगभग सेम है, बस हमने क्या किया है, उधर कांस्टेंट रेडियस r रहता था, इधर हमारे पास दो हो गए a और b, और हमारे पास अब लास्ट में क्या करना पड़ेगा, प्लॉट किस किस के बीच में, x और y के बीच में। हाँ, यू कैन से एक्स वाई, और उसके बाद फिर आगे आप वही चीजें लिख सकते हो कि इसकी लाइन विड्थ रख सकते हैं हम लोग, है ना, कैसे हम लोग रख सकते हैं कॉमा, ब्लैक कलर में कर देते हैं तो दैट इज के, उसके बाद क्या कर सकते हैं, और इसके एक्स्ट्रा चीज लाइन विड्थ रख सकते हैं, से डबल कर दो 2, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आपका ग्रिड ऑन कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल कर सकते हैं, एंड सो ऑन, एक्स लेवल वाई लेवल, ये सारा, ये नीचे वाले टाइटल वगैरह लिखने, ये तो सब में एक कॉमन चीज है, तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दीज, है ना, थिंग्स, बस हम इस पे फोकस करते हैं। ये जो आपके पास मेन आपके पास कोड है यहां से लेके सॉरी यहां तक, सॉरी, तो चलिए जी, लेट्स कम टू द कोड। तो ये रहा हमारे पास इलिप्स बी के लिए। ओके, जो मैंने अभी आपके लिए बोर्ड पे टाइप किया था वही चीज मैंने बोर्ड पे लिखी थी, वही चीज मैंने यहाँ पे टाइप की हुई है। क्या लिखना है जी सबसे पहले? सर रैपिड वाली। हाँ जी, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू क्या होएगा, लिनस्पेस, कहाँ से, वेरिएबल है फ्रॉम 0 to 2 पाई, 500 टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने डिविजन्स दिए हैं, x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू b sin t, प्लॉट x और y, लाइन विड्थ मैंने 2 रख दी। देखिए इसका आउटपुट क्या बनेगा, तो दिस इज द आउटपुट, है ना, कितना आसान है, इसको बनाना तो बहुत ही आसान हो गया, मैंने ग्रिड ऑन एक्स इज इक्वल ये सब दिया हुआ है। तो दिस इज द आउटपुट, कोड बहुत आसान है, आपका कोड ना प्लीज ध्यान रखना सिर्फ यहां से यहां तक ही है बेसिकली, तो आपका कोड ए डिफाइन किया, बी डिफाइन किया, लिन स्पेस दिया, एक्स दिया, वाई दिया, प्लॉट कर दिया, बहुत आसान है। और यही काम अगर हम किसी पहले, जब हम पहले करते थे, कई बार हम लोग कोड बनाते थे, इवन मेरे को याद है फॉर्ट्रेन में, सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में तो खैर अभी भी काम कर रहे हैं, फॉर्ट्रेन बहुत पुरानी बात है, तो हमारे पास ना इनबिल्ट जिसको लाइब्रेरी फंक्शंस कहते थे वो बहुत कम थे, हमारे को मतलब बनाना पड़ता था छोटी छोटी चीज भी, तो मैटलैब ने ये सारी चीजें हमारे लिए आसान कर दी हैं, इतने ज्यादा इनबिल्ट फंक्शंस हैं कि देखो मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा, स्पेसिंग चाहिए थीटा के लिए, लिनस्पेस कमांड मिल गई, एक्स को हमने सिंपल पैरामीटर में साइन कॉस ऑलरेडी वेल डिफाइंड आपकी लाइब्रेरी में फंक्शंस पड़े हुए हैं, प्लॉट किया तो प्लॉट हो गया, तो इट्स वेरी इजी, है ना, मैटलैब के साथ। चलिए उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली आपके पोलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो पोलर फॉर्म हमने पहले भी डिस्कस की थी, क्या होता है जनरल इक्वेशन, आर इज, चलो यही वाली पकड़ लेते हैं, आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, वेयर एल आपके पास क्या होता है, एल अगर आप सोचो ध्यान से, ये होता है सेमी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, है ना, यही होता है। अच्छा, और ई आपके पास क्या होता है, ई इज द इसेंट्रिसिटी, और ई की वैल्यू फॉर, क्योंकि हम लोग इलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ई का वैल्यू शुड बी लेस देन 1, करेक्ट। चलो ऐसा करते हैं, यही वाले इलिप्स पे आते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बेटा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि प्लस साइन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी डायरेक्ट्रिक्स है उसको मैं उस फोकस वाले पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे मान रहा हूँ, समझ गए ना, प्लस का साइन मतलब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और अगर मैं नीचे नेगेटिव ले लूँ देन आई विल टॉक अबाउट द राइट हैंड। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है जो आपको पोलर इक्वेशन के टाइम पे आपके टीचर्स बताते हैं, जैसे आप स्टार्ट करते हो पोलर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो जी अब मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम आते हैं कि जी इस फंक्शन में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, तो मेरे को ई तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, अगर मैं इस पे जा रहा हूँ, तो ई क्या होता है आपके पास, स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और एल, एल मतलब आपके पास सेमी लेटेस्ट रेक्टम, तो पूरा लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है
2b² अपॉन ए, तो सेमी आपके पास क्या हो जाएगा, b² अपॉन ए, है ना, सेमी की बात कर रहा हूँ। अगर आपने सिंबल कुछ और यूज करना है कुछ और कर लेना, एल हियर सेमी लेटेस्ट रेक्टम, फाइन। तो अगर मैं ये दोनों चीजें इधर पुट करूँ तो मेरे ख्याल से मेरा इक्वेशन बन जानी चाहिए। मतलब ये वाला कोड मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, पहले जी मैटलैब को मैं ए की वैल्यू दूंगा, फिर मैं मैटलैब को बी की वैल्यू दूंगा, फिर मैं ई का एक्सप्रेशन लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप मैं एल का एक्सप्रेशन लिखूंगा, और फाइनली मैं आर का एक्सप्रेशन लिखूंगा। ये मेरे बस 5 स्टेप है। ये देखो, सबसे पहले ए डिफाइन करना पड़ेगा, बी डिफाइन करना पड़ेगा, ई इवेल्युएट करना पड़ेगा, एल इवेल्युएट करना पड़ेगा, और लास्ट में ये सारी चीजें यहाँ पे यूज हो जाएंगी। बस एक चीज बीच में मिस हो गई है, वो चीज कौन है, मेरे को थीटा की वेरिएशन देनी पड़ेगी, है ना। तो बीच में एक स्टेप कौन सा होएगा, आई शुड डिफाइन थीटा। थीटा एज यूजुअल हम किससे ले लेंगे, फ्रॉम 0 to 2π, क्योंकि मेरे को पूरा का पूरा सर्कल कवर करना है। देखिए अब ये कोड बना के, तो एक बार पहले ऐसे ही लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ए डिफाइन करूंगा, से ए की वैल्यू 5 रख दी। दूसरा स्टेप मैं बी डिफाइन करूंगा, से 3 रख दिया। तीसरा स्टेप मैं इसेंट्रिसिटी ई निकालूंगा, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, हाँ जी, क्या अभी अभी लिखा था फॉर्मूला, 1 माइनस b² बाय a²। अच्छा, नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए, एल। एल आपके पास क्या था, टोटल लेटेस्ट वेक्टर होता है 2b² अपॉन ए, तो ये कितना बन जाएगा, b² अपॉन ए। यहां तक तो मेरे पास ये डिफाइन हो गया, ई डिफाइन हो गया, एल डिफाइन हो गया। अब मेरे पास आर क्या होता है, एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा। ओके, तो अब मेरे को फोकस किसके करना पड़ेगा, नेक्स्ट थीटा पे, है ना। तो थीटा को डिफाइन कर देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू लिन स्पेस, हाँ जी, कहां से स्टार्ट करें, 0 से, पूरा का पूरा इलिप्स कवर करना है यहां से लेके यहां तक। तो इसका मतलब थीटा शुड वेरी फ्रॉम 0 to 2π। नंबर ऑफ पॉइंट्स आप कुछ भी रख लो, से फॉर द टाइम बिंग 500। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब तो आर करना आसान है, क्या होएगा, एल 1 प्लस ई स्टार कॉस थीटा। बट एक एरर मैंने कर दी, क्या है वो एरर, यहाँ पे डॉट डिवाइड होएगा। रीजन, थीटा इज नॉट अ स्केलर। एल आपका स्केलर है, ठीक है, 1 स्केलर है, ठीक है, ई स्केलर है, ठीक है, ई हमने निकाल लिया था यहाँ पे स्केलर, बट कॉस थीटा वाज अ मैट्रिक्स, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट डिवाइडेड बाय। उसके बाद तो फिर आसान है, सेम टेक्निक, एक्स इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, आर साइन थीटा, और सिंपली हमें क्या कर देना पड़ेगा, प्लॉट बिटवीन एक्स एंड वाई। कितना आसान सा है, देखिए एक बार करके कि इसकी आउटपुट कैसी आती है। चलिए जी, लेट्स कम टू योर कोड। हाँ जी, इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में क्या हो गया, क्लियर ऑल, CLF क्लियर फिगर, ए को डिफाइन कर दिया, बी को डिफाइन कर दिया, ई इवेल्युएट करवा लिया इसेंट्रिसिटी, एल आपके पास सेमी लेटेस्ट रेक्टम इवेल्युएट करवा लिया, और फिर आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, थीटा को वेरिएशन दी फ्रॉम 0 to 2π टू कवर द एंटायर इलिप्स। नेक्स्ट आपने आर किया, एल डॉट 1 प्लस ई कॉस थीटा। फिर आपने क्या किया, एक्स और वाई डिफाइन किया, क्योंकि अब हमारे को प्लॉटिंग करनी है, प्लॉट कर दिया एक्स और वाई के बीच में। तो दिस इज द सिंपल कोड, है ना, कितना आसान है इलिप्स के लिए। दिस इज क्लियर और CLC। देखिए जी, ये है आपके पास कोड। एक बार हम इस कोड को रन भी करके देख लें। तो दिस इज द आउटपुट, ठीक। अच्छा, मेरे को ऐसे ही आप लोगों से एक जनरल क्वेश्चन है। ये जो आपके पास कोड बना, इस कोड में अगर आप ध्यान से देखोगे, पोलर में जब हमने बनाया, उससे पहले जब कार्टेशियन और पैरामीट्रिक बनाया था तब कुछ नहीं था, बट इसमें इश्यू ये हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, प्लॉटिंग में इसने जो पोल है वो -4,0 को रखा है ना। अगर आप ध्यान दो, इसमें ये रहा -4, ये रहा 0, तो -4,0, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पोलर फॉर्म। आपको पोल के बारे में नॉलेज है ना, पोलर फॉर्म में पोल, पोल आपको इसने किस पे फोकस किया, क्योंकि शुरू में मैंने पॉजिटिव साइन रखा था आपका एल का। इसका मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट हैंड डायरेक्ट्रिक्स। लेफ्ट हैंड डायरेक्ट्रिक्स का मतलब ये जो, अगर आप इलिप्स की बात करो, लेट मी राइट इट हियर, अगर आप इलिप्स की बात करो यहाँ पर, तो ये कौन से पे फोकस कर रहे हैं, आपके इस वाले पे, क्योंकि लेट मी राइट इट, देखो ये आपके पास ओरिजिनल इलिप्स था, है ना। क्या क्या वैल्यूज थी, ए की वैल्यू 5 थी,
और -5, 0 अगर मैं पूरा लिखूं तो, और यहाँ पे था 0, 3 और यहाँ पे कौन था 0, -3। तो इसका जो आपके पास फोकस बने वो क्या बने, हाँ जी, इसेंट्रिसिटी क्या आई, इसेंट्रिसिटी होती है 1 माइनस क्या बनेगा बेटा, b² अपॉन a², तो कितना हो गया √16/25, तो इसेंट्रिसिटी होगी मेरे पास 4/5। तो फोकस क्या हो गया, फोकस आपके पास होता है बेसिकली, अगर मैं दोनों फोकस की बात करूं, +-ae, 0, और याद रखना ए शुरू में हमने 5 डिफाइन किया था, तो जो आपके पास फोकाई हो गए वो क्या हो गए, +-4, 0, करेक्ट, +-4, 0, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दीज फोकस 4, 0, ये 4, 0, दिस इज S1, दिस इज S2। अगर आप याद करो मैंने इलिप्स की इक्वेशन ये ली हुई है, कौन सी, R इज इक्वल टू L/1 + E cos थीटा, यही लिया है ना। अच्छा, जो आपके पास ये साइन है दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव मतलब मैं किस पे फोकस कर रहा हूं, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड पड़ी हुई है, तो इट मींस जो ये इलिप्स बनाएगा इसने अपना पोल कौन सा ले लिया, -4, 0। तो ये है आपके पास, अगर आप लोगों को लगे जी ये आपका ग्राफ इलिप्स तो बन गया, बट इसका जो सेंट्रलाइज फोकस नहीं है ना, ओरिजिन के अराउंड सेंट्रलाइज नहीं है, क्योंकि ये आप पोलर में कर रहे हो, दिस इज द होल रीजन, बाकी आपका बनेगा इलिप्स ही। अच्छा जी, अब हमारा लास्ट एज यूजुअल हम क्या करते हैं, एक सिंगल प्लॉट पे हम मल्टीपल प्लॉट्स क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये वाले जो आपके पास है बिल्कुल जैसा हमने सर्कल किया था सेम टू सेम कोड है, और आपके पास जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी। मैं अब इस पे नहीं जा रहा क्योंकि मेरे को अभी हाइपरबोला, आपका साइक्लॉइड, कार्डियोइड, ये भी सब पे जाना है, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। आउटपुट आपके पास आएगा ये वाला। इसमें मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, सेम जो सर्कल के लिए मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया था, सेम इलिप्स के केस में है। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट मल्टीपल इलिप्सिस बेसिकली हैविंग कॉमन सेंटर, है ना, सेंटर कॉमन मैंने ओरिजिन रखा हुआ है, बस हम लोगों ने 3 अलग अलग किए। और इलिप्स का आपका कैसे चेंज होएगा, क्योंकि इलिप्स के टाइम पे ना यू प्ले विद द इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी किस पे डिपेंड करती है आपकी, ए और बी पे। तो देखो ध्यान से, ए को जब मैंने 2 और बी को 1 रखा तो ये आपके पास ये नॉर्मल बन गया इलिप्स। जब मैंने ए को 1 और बी को 1.5 कर दिया तो आपके पास क्या बन गया, दोनों का सॉरी, ए को 1.5 और बी को 1.5 लिया तो देन इट इज अ सर्कल। और तीसरा जब मैंने उल्टा किया तो कितना हो गया, इट इज अ अगेन इलिप्स, लेकिन ये इलिप्स कौन सा हो गया, जिसको हम बेसिकली बोल देते हैं वर्टिकल इलिप्स, है ना, जिसकी जो आपकी एक्सिस है दैट इज बेसिकली वर्टिकल वाई एक्सिस। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे आपके हाइपरबोला पे, जिसपे ऑब्वियसली थोड़ा सा मैथमेटिक्स और थोड़ा सा कोडिंग हमें दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। तो लेट्स कम टू योर हाइपरबोला। तो सबसे पहले हाइपरबोला को थ्योरेटिकली समझते हैं, बाद में उसके कोड पे जाएंगे। अच्छा जी, पहले मेरे को ये बताइए हाइपरबोला में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगी। सपोज कर लो मैं सिंपल हाइपरबोला से शुरू करता हूँ इन कार्टेशियन, ठीक है, पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे। देखो जी, अच्छा वो भी मैं क्या ले लेता हूँ, ए और बी भी इक्वल ले लेता हूँ ताकि और आसान रहे। ए को 1.5 ले लो, बी को 1.5 ले लो, ठीक है, मैं सबसे आसान से स्टार्ट करता हूँ। तो इट मीन्स मेरे को ऐसा कोई हाइपरबोला चाहिए, ऐसे वाले, ऐसे की बात कर रहा हूँ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो कितना बनेगा बेटा आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली प्लस माइनस स्क्वायर रूट b², ये इधर गया ये इधर आ गया, x² अपॉन a² माइनस 1। अभी के लिए सिर्फ इतने पे फोकस करते हैं। देखो सीधी सी बात है, 2 ब्रांचेस रहेंगी, ये रहेगा, लेकिन वहां पर आपके इलिप्स के केस में जो x की वेरिएशन है वो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देते थे, याद है, हम x वेरी करवाते थे फ्रॉम -a to a। बट यहाँ पे तो आपका x बेटा इधर जाएगा, करेक्ट, और आपका x कहाँ जाएगा, ये वाली स्पेस पे जाएगा। जब यहाँ पे वेरिएशन जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास कोड में एरर क्रिएट होगी, ठीक है। क्यों एरर क्रिएट होगी, बिकॉज आपके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव जा सकता है, हमने उस चीज को अवॉइड करना है। तो दिस इज द मेन टास्क। तो हम ऐसा करते हैं, पहले एरर वाला कोड जनरेट करते हैं, तब बाकी आपको समझ में आए कि एरर क्यों आ रही है
और किसकी वजह से आ रही है, ट्राई करें। तो हमारे को पेपर में, सॉरी आपके इस कोड में क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले ए डिफाइन करना पड़ेगा, से 1.5, फिर हमारे को बी डिफाइन करना पड़ेगा, मैं आसान के लिए कर रहा हूँ, से अगेन 1.5, और फिर हम क्या कर देते हैं, ओमिट करना है कि आपके पास रियल वैल्यूज लें। तो इसका मतलब आपका एक्स जितना मर्जी हो जाए लेकिन कभी ए को क्रॉस ना करे। इट मीन्स दिस इज द रेस्ट्रिक्शन कि आपके पास जो एक्स है वो जहां मर्जी से स्टार्ट कर लो, बट इट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू माइनस ए, है ना। चलो लेस देन इक्वल टू, या फिर आपके पास क्या करे, नेक्स्ट टाइम ए के बाद से स्टार्ट करे। तो ऐसा नहीं हो रहा कि मेरे पास जो, सॉरी ये मैं ये लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, है ना, तभी आपके पास वो बनेगा ना, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अच्छा, उल्टा अगर मैं चलूं तब भी प्रॉब्लम आएगी। तो कॉमन हम मैथमेटिक्स में ऐसा कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। आई थिंक इससे बात बन जाएगी। अगर मैं एक्स की सिर्फ वो वैल्यू चूज करूं जिसमें आपके पास जो मॉड ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो, तो शायद मेरी बात बन जाए। अब मेरे को इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, मैं प्लॉट कहां से कहां तक करवाना चाहता हूं, से मैं जो प्लॉटिंग है वो -40 से +40 तक करना चाहता हूँ, से मैं प्लॉटिंग इसके बीच में रखना चाहता हूँ। तो मेरे को प्लॉटिंग कैसी करनी पड़ेगी, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, x1 डिफाइन कर देता हूँ, लिन स्पेस, हाँ जी कहाँ तक जाएगा, दिस विल गो फ्रॉम -40 टू a अप टू से 500 पॉइंट्स में बाइफर्केशन कर देते हैं। और एक मेरे को x2 करना पड़ेगा। x2 कैसे करना पड़ेगा, लिन स्पेस, हाँ जी कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम a टू 40 अप टू 500 पॉइंट्स। और एक मैं अब x डिफाइन कर देता हूँ, x क्या आएगा बेटा, x1 कॉमा x2, खत्म। अब तो कोड बन जाएगा, देखिए कोड बना के। तो एक बार इसको मिनिमाइज करते हैं। तो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट कोड्स हैं हमारे पास, हाइपरबोला ये रहे। सेम जो चीज मैंने अभी आपको बोर्ड पे लिखी थी वही चीज पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हाँ जी, इसमें एक छोटी सी एरर आएगी, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या आएगी। तो पहले तो हम देखते हैं जो हमने अभी लिखा उसकी आउटपुट कैसे आती है। हाँ जी, सबसे पहले तो बेटा आपको पता लग गया होगा एरर आई। रीजन, इसमें मैंने सीधा वेरिएशन क्या कर दी, फ्रॉम -40 टू +40। क्लियर हो गया। मेरे को प्रॉब्लम कहाँ पे आई, क्योंकि मैंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि जो मॉड ऑफ एक्स है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। -40 अपॉन 40 में आ गई प्रॉब्लम। क्लियर। अब मैंने इस कोड को सही करना है रन, है ना। तो कैसे सही करूंगा, जो अभी हमने डिस्कस किया कि हम इस पे दो वेरिएशन लेंगे। एक वेरिएशन आपकी चलेगी मोड की वजह से। चलो जी लेट्स सी। तो हाइपरबोला यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ए की वैल्यू डिफाइन कर दी, बी की कर दी। एक्स को हमने सबसे पहले x1 वेरिएबल लिया, कहां तक गया, फ्रॉम -40 टू -a। और फिर हमने क्या किया, x2 वेरिएबल लिया, कहां तक गया, फ्रॉम a टू 40, है ना। यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ मेरे को ये -a करना चाहिए, -a। तो कितना आया आपके पास, -40 टू -a, देन a फ्रॉम 40। क्या हम लोगों ने वो जो मॉड ऑफ एक्स है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यही मैथमेटिक्स पीछे बैकग्राउंड है। मॉड ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, उसके लिए हम लोगों को ये दो स्टेप लगाने पड़े। बाकी तो अब आपका सिंपल है प्लॉट। तो हमने जब प्लॉट किया नाउ व्हाट इज द एरर, एक मिनट बेटा, क्लियर ऑल CLSC, लेट्स सी द कोड, ग्राफ आ चुका है। ये तो पुराने वाला है। प्लॉट क्या दिक्कत आ रही है, एक सेकंड बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाइपरबोला मैंने एक्स डिफाइन कर दिया, प्लॉट कर दिया, अच्छा 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 अच्छा, ये ना मैंने इसको अनकमेंट करना भूल गया, सॉरी बेटा, एक सेकंड बस, आई शुड कमेंट दिस थिंग। हाँ जी, तो दिस इज द कोड। अब देखते हैं रन करके।
ये रही आपके पास आउटपुट। तो दिस इज द आउटपुट। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या आ रही है, दोनों जो वर्टेक्स हैं किसके, आपके हाइपरबोला के, वो दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। क्या एरर हो सकती है, आप जरा देखो ध्यान से कोड में। हमने सभी चीजों का ध्यान दिया। आपका जो मॉड ऑफ एक्स है वो पॉजिटिव भी रखा, तो उसको मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए रखने से क्या हो गया, हमारी जो कॉम्प्लेक्स आ रही थी वैल्यूज वो अवॉइड कर दी, तो पहली एरर तो हमने हटा दी। तो इसलिए हमारा प्लॉट हो गया, प्लॉट भी हो गया जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब वो आपके पास ब्रांच शिफ्टिंग हो रही है, समझ में है? ब्रांच शिफ्टिंग को मेरे को अवॉइड करना है। ब्रांच शिफ्टिंग मतलब आपके इधर से एक ब्रांच स्टार्ट हुई, यहां तक पहुंची, फिर ये दूसरी ब्रांच के ऐसे पहुंच रही है, इज इट फाइन? वो बीच में लाइन आ रही है, मेरे को वो वाला एरर करना है। तो ये एरर कैसे रिमूव होएगा, आपके जो लिन स्पेस को हमने 1 2 में लिखा था ना, x1 x2 में, इसकी भी हमारे को और x1 x2 x3 x4 में तोड़ना चाहिए, उससे हमारे पास होएगा। तो आई थिंक आई विल शेयर दिस कोड विद यू, क्योंकि ये मैथमेटिकल है। नाउ इट्स नॉट अबाउट कोडिंग। कोडिंग में हमारे कोई एरर नहीं है, कोडिंग की एरर्स हमने रिमूव कर दी। वी कैन, आई कैन शो यू द कोड, बट आई थिंक आप बेटर हम लोग सिर्फ अभी प्लेन सिंपल पे बात करें कि आपका कैसे ड्रॉ हो रहा है। तो लेट्स कम टू नेक्स्ट। हम लोग ऐसा करते हैं, एस्ट्रॉइड पे जाते हैं। एस्ट्रॉइड एक अच्छा सा ग्राफ है और आप लोगों को ये समझ भी आएगा कि एस्ट्रॉइड कैसे करना है। बहुत इजी ग्राफ है। तो लेट्स कम टू, मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ ये वाला हाइपरबोला, क्योंकि हाइपरबोला ऑलरेडी हमारा हो गया है और ये कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट है। एस्ट्रॉइड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, पहले देखते हैं हमारे पास एस्ट्रॉइड होता क्या है। मैं एक नॉर्मल एस्ट्रॉइड की बात कर रहा हूँ, ग्राफ की। एक्स मेरे पास एक है, एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस वाई रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी मैं ले रहा हूँ, ए रेज टू द पावर 2/3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड। कैसा बनता होता है एस्ट्रॉइड, ठीक है, चलो वो तो चलो ग्राफ के थ्रू हम बना ही लेंगे। तो ये है, चलो पहले ऐसा करते हैं, पैरामीट्रिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान पैरामीट्रिक से बनाना एस्ट्रॉइड। क्या लिखेंगे जी, x इज इक्वल टू हम लिखेंगे a, हेल्प करवाइए मेरी, यही होता है कॉस क्यूब टी, और y इज इक्वल टू क्या रखेंगे, a साइन क्यूब टी। बस यही होता है आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो शुरू कैसे करेंगे हाँ जी, सबसे पहले तो मेरे को किसी तरह ले दे के a की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन है, जब a डिफाइन हो जाएगा फिर मेरे को ये t नाम का जो ये पैरामीटर आ रहा है इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली t है, t आपका पूरा का पूरा वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 2 पाई। और नेक्स्ट आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, फिर x, और फाइनली आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, y। तो दिस इज द एंटायर टास्क। करके देखें लॉजिक। सबसे पहले मैंने a को 5 रख दिया, t को लिन स्पेस कर दिया। लिन स्पेस कैसे, मेरे को पूरा का पूरा कवर करना है। एस्ट्रॉइड की बेटा आपको डायग्राम तो पता है ना, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूं। ये है आपके पास एस्ट्रॉइड, है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड। तो अगर जब आपने पूरा कवर करना है, यहां से स्टार्ट किया, ये पूरा कवर करके लास्ट तक आओगे, तो ऑब्वियसली जो आपके पास पैरामीटर है दैट शुड गो फ्रॉम 0 to 2 पाई। इसलिए मैंने यहाँ पे दिए लिन स्पेस 0 to 2 पाई। 1000 आप 500 कर लो, 200 कर लो, उससे भी आ जाएगा, स्मूथ ही रहेगा आपका फंक्शन। x इज इक्वल टू a cos क्यूब टी, y इज इक्वल टू a sin क्यूब टी। सिंपली प्लॉट x एंड y, और एस्ट्रॉइड हमारा प्लॉट हो गया। इट्स वेरी इजी, है ना एस्ट्रॉइड। देखो ध्यान से, दिस इज एस्ट्रॉइड। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आए किस पे, इसी के बेटा कोई ज्यादा फास्ट हो रहा है मेरे को बता देना अगर ये ठीक है, आप लोगों को समझ आए, बिकॉज इट्स वेरी इजी कोड। और एस्ट्रॉइड के बारे में ना आप लोगों को तो मतलब इक्वेशन तो सीधा आपकी बुक्स में भी दी हुई है, x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 एंड सो ऑन। फाइन। तो इसलिए एस्ट्रॉइड में कोई ज्यादा नहीं है और बहुत आसान सा है। अगर आप लोगों को नॉर्मल आपका सर्कल बनाना आता है तो एस्ट्रॉइड भी बिल्कुल वैसा ही है। सर्कल के केस में होता था x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t। यहाँ पे आपके पास cos क्यूब t और sin क्यूब t है। हाँ जी, प्रॉब्लम कब आएगी, जब मैं इसी चीज को कार्टेशियन में करने की कोशिश करूंगा चलो कार्टेशियन में देखते हैं क्या होएगा। 2/3 इज, मतलब बेसिकली तो इक्वेशन ये रहती है ना आपकी, मतलब अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं, x अपॉन a रेज टू द पावर 2/3, y अपॉन b, सॉरी y अपॉन अगेन a 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन। क्या करोगे, यहां से आप किसी तरह पहले y की वैल्यू कंप्यूट करोगे,
इधर जाके पावर को आप क्या कर दोगे, बेसिकली 3/2। फिर आप इनपुट किसको दोगे, अगर आपने कोड बनाना है, इनपुट आप x के लिए रखोगे, आउटपुट आप किस फॉर्म में दोगे, आउटपुट आप y की फॉर्म में दोगे, और लास्ट में आप क्या कर दोगे, प्लॉट x, y। तो ये भी आसान है, बस हमारे को पावर्स का ध्यान रखना है। मतलब पहले आप क्या कर सकते हो, एक रफ कॉपी पे एटलीस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने का मतलब क्या है, यहां से y को एक्सप्लिसिटली x की टर्म में लिख दो, है ना। यू मे राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ y। क्लियर करके देखिए अब इसको। चलिए जी, तो इसका हम लोग आते हैं कार्टेशियन फॉर्म पे। चलिए पहले समझते हैं। तो सबसे पहले एस्ट्रॉइड प्लॉट यूजिंग कार्टेशियन इक्वेशन। a इज इक्वल टू 5। शुरू में हमारे को a तो डिफाइन ही करना पड़ेगा कि कितना रखना है। x को लिनस्पेस दे दिया फ्रॉम -a टू a, बिकॉज x जो है आपके पास, अगर मैं इसको ये ऐसे बनाऊं, ऐसे ही बनेगा। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज फ्रॉम -a टू a। तो इसलिए हमने x की लिमिट दी है, x इज गोइंग फ्रॉम -a टू a। फाइन। अच्छा, अब इसकी फिर से दो ब्रांचेस होंगी, बिकॉज जब मैं यहाँ पे इधर पावर करूंगा तो y विल बिकम टू प्लस माइनस। तो वही हमने लिखा हुआ है, a टाइम्स 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x बाई a का होल रेज टू द पावर 2/3 एंड होल रेज टू द पावर 3/2, जब मैंने y को उधर लेके गया। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे कार्टेशियन की फॉर्म में, तो एक मिनट, लेट मी सी द आउटपुट। तो दिस विल बी द आउटपुट। ये रही जी आपके पास आउटपुट। ये अपर ब्रांच है, मैंने जान के इसको दो डिफरेंट कलर में किया है। एक को मैंने कलर ब्लू है और एक का कलर आपके पास रेड। तो ये दोनों आपके पास क्या दे रहे हैं, बेसिकली दीज आर द टू ब्रांचेस ऑफ द एस्ट्रॉइड। तो इसका मतलब जब आपके पास कोनिक सेक्शन या एस्ट्रॉइड या ऐसी पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज होते हैं, ये तो देखो आपको ऑलरेडी नॉलेज है। कुछ चीज़ें हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में आसान रहती हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास कार्टेशियन में आसान रहती हैं, और कुछ चीज़ें हमारे पास पोलर में आसान रहती है ना। वो डिपेंड करता है आप कैसे ट्रीट करते हो। फॉर एग्जांपल एस्ट्रॉइड जब भी, अगर आपको याद हो, आपके टीचर्स ने इंट्रोड्यूस किया होगा, वो हमेशा आपको पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाता है, उसके बाद कार्टेशियन में, और फाइनली वो आपको पोलर में करवाता है, क्योंकि पोलर में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, आपको इक्वेशन याद रखने के लिए। वही चीज़ अब हम भी बिल्कुल वही वाला आपका ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। तो फाइनल वी कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज पोलर पार्ट। तो पोलर पार्ट में हमने क्या किया हुआ है, सिंपली एस्ट्रॉइड की पोलर इक्वेशन में लिखी हुई है। चलिए यहीं को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी शो यू। बेटा एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, तो हमने एस्ट्रॉइड को पोलर फॉर्म में लिखा, a अपॉन मॉड ऑफ कॉस थीटा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन थीटा होल रेशियो ओवर 3/2। ये तो सिंपल है ना। आपने इसमें क्या करना है, x को वैल्यू पुट कर देने। बेटा आता है ना पोलर फॉर्म डिराइव करना। इसमें मैं इसलिए नहीं टाइम लगा रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा कोड करवा दूँ। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू दिस वन, है ना, सॉरी, x इज इक्वल टू a cos theta, y is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta। इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो यू विल गेट r इन टर्म्स ऑफ दिस वन। तो वही मैंने डायरेक्ट बना के लिख लिया ताकि मेरे को थोड़ा टाइम बच जाए। तो जब हम लोगों ने लिखा, इसको प्लॉट किया, तो आप देखोगे सेम एस्ट्रॉइड की इक्वेशन बनेगी। एक बार जरा इस कोड को समझे पहली लाइन से। हाँ जी, सबसे पहले a को 5 टिक शो किया एज यूजुअल। उसके बाद नेक्स्ट हमने थीटा डिक्लेयर किया फ्रॉम 0 to 2π, इट्स इजी। नेक्स्ट हमने पोलर इक्वेशन लिखा, पोलर फंक्शन r इज इक्वल टू a अपॉन मॉड कॉस थीटा होल रेज़ टू पावर 2/3 प्लस मॉड साइन थीटा होल रेज़ टू पावर 3/t, पूरे का पावर 3/2, क्योंकि r की वैल्यू भी निकालनी है। और लास्ट हमने बैक कन्वर्ट कर दिया, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, प्लॉट कर दिया। इट मीन्स प्लॉटिंग कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए ये डॉट क्यों लगा है। डॉट इसलिए लगा है बिकॉज थीटा इज अ इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये आपके पास रो मैट्रिक्स बन रही है, करेक्ट। तो आपके पास डॉट डिवाइड, डॉट मल्टीप्लाई ये रहेगा।
वैसे यहाँ पे अगर डॉट ना भी लगाते तब भी आपके पास नहीं डॉट लगाना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास थीटा भी ये हो गया और आर भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ सिंगलटन, मतलब सिंगलटन एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। हाँ जी, क्लियर। तो ये था आपके पास एस्ट्रॉइड। अच्छा, ऑब्वियसली सबसे आसान एस्ट्रॉइड हमारे पास क्या था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। क्लियर। तो बेटा मेरे पास टाइम कम है, तो ओके, थर्ड मैंने वही सोचा था कि आप लोगों के लिए करवाऊंगा एस्ट्रॉइड इन टर्म्स ऑफ 3 थिंग्स। चलो अब ये खत्म करके हम लोग, वैसे मेरे पास और भी कई पैरामीटर्स हैं, जैसे कार्डियोइड है, देन यू हैव लेमनीस्केट है ना, ये सारे आप, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स, है ना, आपके पास स्टैंडर्ड कर्व्स भी बहुत है, वैसे तो इनफाइनाइट है ही है, इवन स्टैंडर्ड कर्व्स भी हमारे पास बहुत वैरायटी की है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम लेंथ ऑफ अ कर्व पे आते हैं। लेंथ ऑफ अ कर्व, लेट्स कम टू दिस। देखो लेंथ ऑफ कर्व कितना आसान है, आपको करवाया गया है क्लास में लेंथ ऑफ कर्व। फॉर एग्जांपल से मेरे पास एक एक्स टू वाई है और मैं इस कर्व की लेंथ निकालना चाहता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये जो कर्व है ये है y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, कर्व जा रही है फ्रॉम सॉरी x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक। तो फॉर्मूला क्या बनता है, लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b dx। इसका मतलब लेंथ ऑफ अ कर्व इज सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ योर लाइन नॉर्मल इंटीग्रेशन। करेक्ट। जब आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करवाया जाता है ऑन इन द वेरी बीएससी फर्स्ट ईयर ना, तो यही फॉर्मूला करवाया जाता है। करेक्ट। तो यही मैंने यूज किया है। हाँ जी, क्या करना है, सबसे पहले मैं कहता हूँ लेंथ ऑफ अ कर्व, एक मेरे को कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स, उसकी मेरे को लेंथ निकालनी है फ्रॉम 0 से पाई। तो पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा, आपका फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन ऑलरेडी मैंने पूछा था, दिलबाग सर ने आपको डिफाइन कराना सिखाया था, मैंने उसमें से सबसे सिंपल वाला करवाया है। तो कैसे हम डिफाइन करते हैं, एफ इज इक्वल टू एट द रेट एक्स। एट द रेट एक्स मतलब हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो एक्स इज बेसिकली, देखो दो मेथड है, या तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं या फिर हम लोग सीधा एफ इज इक्वल टू एट द रेट एक्स साइन ऑफ एक्स करके लिख सकते हैं। करेक्ट। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वैसे तो डेरिवेटिव हम इससे भी कंप्यूट करवा सकते हैं, लेकिन फिर मेरे को लगा नहीं चलो पहले आसान से स्टार्ट करते। तो मेरे को पता है साइन का डेरिवेटिव इट विल बी कॉस एक्स, तो मैंने डेरिवेटिव फंक्शन डिफाइन कर दिया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को ले लिया ए इक्वल टू 0। एंड पॉइंट क्या है मेरे पास, बी इक्वल टू पाई, तो बी इक्वल टू पाई ये मैंने लगाया आपके पास फॉर्मूला आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या रहेगा जी, इंटीग्रेंट स्क्वायर रूट 1 प्लस डी एफ, डी एफ मतलब ये डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट समझ में। ये देखो ये जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, इंटेग्रल करना है। इंटीग्रेशन का ऑलरेडी परमजीत सर ने आपको है ना सिखाया फॉर्मूला, क्या होता है सिंपल इंटेग्रल आर्क लेंथ का यही रहेगा, लेंथ वैल्यू इज इक्वल टू इंटेग्रल आर्क लेंथ, जिसको हमने फंक्शन डिफाइन किया है, कहाँ तक इंटीग्रेशन करनी है, फ्रॉम ए टू बी। लो जी, ये हमने किया आर्क लेंथ फ्रॉम ए टू बी, ये आ गया हमारे पास आंसर। ऑल CLC एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये रहा। हाँ जी, कैसे ये आउटपुट आया देखिए ध्यान से। प्रिंट एफ, सबसे पहले लेंथ ऑफ द कर्व, कौन सा लेंथ ऑफ द कर्व, y इज इक्वल टू एफ एक्स, परसेंटेज 2 मतलब अप टू 0.2 तक मेरे को बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट कौन था मेरे पास वेरिएबल में, इनपुट में a क्या था 0, तो आउटपुट क्या आई 0.00, बिकॉज मैंने वहां पे 0.2 लगाया हुआ है। अगर मैं 0.1 करूंगा तब क्या हो जाएगा, 0.1 तक आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहाँ तक जाना है, मेरे को बी तक जाना है। बी की वैल्यू कितनी है पाई, तो पाई को मैंने बोला 0.2 तक ले ले, तो पाई की वैल्यू इसने क्या ली 3.14। और मैंने कहा जो भी आउटपुट आए उसको 0.6 तक शो करना, अप टू एक्यूरेसी 0.6 पॉइंट्स, है ना। तो अप टू डेसिमल 0.6 इसने दिखाया और ये इसने लिख दिया लेंथ ऑफ द कर्व। और प्लस मैंने इसको स्पेशली बोला था कि मेरे लिए तू प्लॉट भी कर दे, तो इसने प्लॉट भी कर दिया। ये किस कर्व की लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज साइन एक्स, कहाँ से जा रहा है फ्रॉम 0 टू पाई, तो दिस इज माई एंटायर कर्व और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 3.82 यूनिट्स। कितना आसान सा कोड है ना। क्या हमने किया है, सिंपल फॉर्मूला लगाया और आपके इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन यूज कर ली नॉर्मल। तो अब हम एक थोड़ा सा बस एरिया भी कर लें। आई नो एरिया ऑलरेडी आपको आता है। एरिया क्या होता है, सिंपली आप इंटीग्रेशन की हेल्प से चलो कर लेते हैं, आसान सी चीज है ना। एरिया अंडर द कर्व, सपोज कर लो साइन एक्स नाम की कर्व का ही मैंने एरिया निकालना है फ्रॉम 0 टू पाई, इसका मैंने एरिया निकालना है।
ये वाला। तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर मेरे को एरिया निकालना है मैथ्स में इसका, इस कर्व का, तो दिस सिंपली साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई। अगर आपने ये कर लिया लेंथ ऑफ अ कर्व, अब एरिया तो कुछ भी नहीं बचा। एरिया तो बस अब आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 0 to पाई, यानी कि आपको फंक्शन डिफाइन करना है, इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 to पाई, और एरिया दिखा देना है। तो ये तो बहुत ही आसान कोड हो गया। ये देखो कितना आसान कोड है। f इज इक्वल टू @x साइन एक्स, मैंने फंक्शन डिफाइन किया। कहाँ तक चलना है, a फ्रॉम 0 to पाई, मतलब a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू पाई। एरिया वैल्यू सिंपली इंटीग्रेशन f फ्रॉम a to b। f प्रिंट f मैंने कर दिया एरिया। तो अब जरा रन करके देखें इस कोड को। हाँ जी, तो एरिया कितना आया, 2। सिंपल, मेरे को भी वैसे ही पता है 0 से 90 डिग्री का 1 होता है, 0 से पाई का 2 रहता है। हाँ, अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने एक प्लॉटिंग भी की हुई है। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को ना इंटरेक्टिव बनाने के लिए, कैसे है, कुछ खास नहीं है। मैंने सिंपली प्लॉट कर दिया, एक्स और वाई के लिए प्लॉटिंग किया। नीचे मैंने एक एरिया कमांड लगा दी, एरिया एक्स कॉमा वाई, फेस कलर मतलब मैंने जान के ये स्काई ब्लू क्रिएट किया है, 0.7 0.91। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं फेस कलर रेड लिख देता तो ये सारा सीधा का सीधा रेड हो जाना था। मैं चाहता था कि इस वाले लेक्चर में आप लोगों को फेस कलर मतलब खुद से कलर्स क्रिएट करने सिखाऊं, कैसे हम लोग इसी को डार्क ब्लू कर सकते हैं। तो उसके लिए लिखा हुआ है, आई विल शेयर दिस कोड, बट यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ हेल्प फ्रॉम योर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। इवन मैटलैब में अगर यहाँ पे आप हेल्थ टॉपिक लिखोगे ना, तो सीधा जैसे मैं इस पे लिख दूं हेल्प इंटेग्रल, तो सारे के सारे इंटेग्रल के जितने फॉर्मूले सीधा सीधा मेरे को मैटलैब विद एग्जांपल डिस्प्ले कर देगा। ठीक, एक बस आपको जाते जाते लास्ट में एक ये चीज़ दिखा दूं, सैडल पॉइंट्स। ये सैडल पॉइंट्स क्या था, आपके पास मल्टी फंक्शन, मतलब मेरे को ये था कि अगर बीएससी सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी साथ में इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए हमने सैडल पॉइंट्स प्लॉट करने की कोशिश की थी। तो दिस इज द सैडल पॉइंट थिंग, ये रहा। ये मैंने प्लॉट करने की कोशिश की थी कि मैटलैब से ऑब्वियसली 3D आपको थोड़े से इंट्रोड्यूस करवाए थे दिलबाग सर ने। तो एक्सेस फिगर प्रॉपर्टी, तो हम लोग आपका जो ग्राफ है इसके साथ हम जैसे मर्जी एक्सेस, मतलब एक बार अगर प्लॉट हो जाए तो वी कैन डू प्लेंटी ऑफ थिंग्स, है ना। आई थिंक पूरा 2 बज गए हैं। आप लोगों ने मेरे को बड़ा पेशेंटली सुना। तो अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं या कुछ भी हैं, तो आई कैन गिव माई ईमेल एड्रेस। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब स्टूडेंट्स ईमेल करते हैं कुछ भी क्वेरीज के रिगार्डिंग, तो यू मे नोट इट डाउन और मैं रिप्लाई पक्का करूँगा। तो लेट हो सकता हूँ, बट आई विल श्योरली रिप्लाई। तो दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस, यू मे नोट इट डाउन। और मैटलैब हमारे यहाँ हमारे क्योंकि एनईपी के अंडर अब मैटलैब हर जगह होता है, तो हमारे यहाँ शुरू से ही चल रहा है हमारे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में और बीएससी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में। तो हम अपने स्टूडेंट्स को वही फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सेम ही